Yeah. So under this VISWA, that is Winter Societies Welfare Association, we also conduct the education and training programs for the societies, so housing societies basically. So it's like if it is a physical meeting, then normally we conduct the education and training program on Sundays. We go to the housing societies and Sundays we conduct this seminar, and we conduct it for maybe 2.5 hours we conduct, and we try to cover 4 to 5 topics, that is society management we try to cover, then transfer and transmission of the shares, which is very close to heart topic for all the members of the society. Then we take conveyanced inconveyance, then we take the cooperative compliances, we talk about the bylaw provisions, we talk about the income tax and GST, and that is how we conduct that session for 2.5 hours, and we also deal with the questions of the members. So if anybody is interested, any society or committee members, if they are interested, so even through Zoom, we are conducting the education and training. And since under Section 24A of the MCS Act, the societies, cooperative societies, they are supposed to conduct this training. They are supposed to collect the education and training fund, and that needs to be utilized for the training of members, committee members, and even the employees. And there is a circular of the department also. So it is important and mandatory for the societies to conduct the training and use that fund, right? And this training should be conducted through notified institutes. So as of now, VISWA is not in the list of the notified institutes, but we have got tie-up with Sahakar Bharati, which is a notified institute. And through Sahakar Bharati, we are trying to, we are doing the seminars, we are conducting education and training program, and we are arranging the certificate also for the housing societies for the education and training program. Yeah. So that is about Vishwa. And then, as you know, I'm a chartered accountant, and my specialization is cooperatives and RERA. So cooperatives, I handle not only the traditional work, that is audits, accounts, but more of a specialized service. That means we are into formations of the housing societies, or the federations. We are doing handover, takeover on behalf of the housing societies. We are dealing with the builders for that. We are into conveyance. We are also doing redevelopment consultancy. We are also into litigation, right? So especially litigation is something which I do enjoy, and this being the quasi judicial authority, so I also appear up to ministry level for on behalf of the housing societies. And since that is my passion also, and there is some mindset among the housing society members or the committee member that she is a chartered accountant, how she can take this, or how she can handle this matter. Chartered accountants are only they can do the accounts, audit, or taxation. But those chartered accountants who are watching me through this program, I will say that there are a lot of opportunities as far as housing societies are concerned. And since it's a quasi-judicial authority, so as a chartered accountant, we can very much appear before the authorities also. So take this into consideration and try to develop your cooperative housing society practice also. But still, I am also pursuing LLB, and I'm a third year law student also. So I'm still in a learning phase, and almost 15 plus years I've completed in the practice. But yes, I love, and since litigation I am enjoying, so I thought let me, because committee members or housing societies, they're saying, "Arey, advocate rahega to better rahega." I said, okay, anyway, we have advocates with us, we have associates with us, but just then I thought, chalo, or thoda even MSc, CET, I read some news that after 40, they are not allowing the LLB course to be done. So I thought it's better. And I just gave the exam, CET online entrance test I got very good numbers there. So I thought, chalo, abhi college bhi join kar lete hain. And now I cleared 2 years also, right? And now I'm in third year LLB student. So that is something good, and I'm enjoying. Now, as a chartered accountant, while handling the audits, I come across that this education and awareness is what is being needed in the housing societies. And there is always, because people say that there is always complaints are more in housing societies. Even the department officials, they feel that there are not many complaints, and that in fact the departmental machinery is very much engrossed with the complaints, so in handling complaints, and they get less time to do the regulation or the
maybe regulatory work or the mechanism, that is what they feel, or the audits or compliance part, they are not able to give time for the housing societies. So I personally feel a lot of education and awareness needs to be created. There are, I mean, everybody feels that I know the bylaw and that is the ultimate bylaw, or I know the provision and that is the ultimate provision. I mean, committee members feel whatever they know is the correct bylaw. The member who is fighting or who is complaining, he feels that whatever he has read is the ultimate thing. And then there is a lot of, lot of issues are happening. So what I do is I take one small topics and I record the videos and I upload it on my channel. So I would request all the participants to kindly visit my YouTube channel, that is Sahakar Viswa. I will put it in the chat box also. So it is Sahakar Viswa. Viswa is being the Societies Welfare Association. So almost 35-40 videos are there on that YouTube channel, and you can sitting at home anytime if you have any issue. So I've tried to touch upon each and every aspect of the housing society, including taxation, GST, RERA, audits, AGM compliances, your transfer transmission, your conveyance, redevelopment. So all, and whenever I find that few messages are getting viral on WhatsApp and where I feel that I need to intervene and post my clarification. So I'm posting those clarification also through the my blog and through this YouTube video. So I would request everybody to kindly visit my channel, Sahakar Vishwa. You can also visit my blog, that is CA Shilpa Shingare Real Cooperative Info blog, and I keep posting the updates there, GR's notifications and all. And you can, if you have any queries, you can very well put your comments and queries there. I do respond. And you can visit my website, that is cashilpashingare.in. So that is my official website. And for professional, if you want to know what are the professional services that we render, so you can very well visit my website. And there is also help desk or a query desk tab on my website also. So if you want to post your queries, you can post your queries there also. So with this little bit background of me and my association, let me straight away come to the topic. It's conveyance and deemed conveyance, and today almost I think 122 participants they have joined. Yeah, 122 participants they have joined, and registrations are more than 300 plus actually. So it's normally 60-70% people they do join for this meeting, and I'm expecting DB Patil Saab also to join. So once he joins, we can ask questions to him also at the end. So what is conveyance basically, and why the conveyance is needed? What is the difference between conveyance and deemed conveyance? Whether these two things are same, whether we should go for the conveyance or we should go for the deemed conveyance? What are the challenges? Why the deemed conveyance is not happening when there are 30,000 or 40,000 housing societies only in Mumbai, and then it's hardly 5,000 societies have done the conveyance? So what are the reasons why the conveyance is not happening? What are the documents that actually we should be having as a society when we are going for the conveyance? So these are the few things I would like to clarify. And I've received some mails with, long mails basically. It is basically pertaining to your own society. So the questions raised with related to the conveyance of your individual society. So the specific queries I am not going to deal here today. We'll be talking about the generalized queries, and specific queries anyway I'm there, so I'll get back to you on that also, because the intention is to create the education and awareness first, and then to deal with the individual or specific queries, right? So what is conveyance? Now if you see the literal meaning of the word conveyance, it says it is conveyance means transfer of right, title or property, right, title, interest in the property, right? That means there is one person who is owner of something, and that person needs to transfer his ownership rights to some other person, right? So this is what the meaning of that conveyance. This is literal meaning of conveyance. Let's take it. Now, in case of a housing society, what happens? Everybody, we are buying a flat. We are buying a flat,
And then it's basically the transaction of a housing society. Let's say there is a plot of land. So let's identify who are the stakeholders or what is the chain. So there is a plot of land. The plot of land is in the name of some owner, that is a landlord or landowner. That person is giving development rights. That means that person, let's say there is a plot which is in the name of Shilpa. Shilpa wants to sell that plot to the builder or a developer. She wants to give development rights. So she will enter into development agreement with the developer, and then the developer, because of the development agreement, he will construct the building, and then he will individually enter into with the in different agreements with the buyers of the flats in that particular building, right? So this is the flow. There is a land, there is a development agreement between the landowner and the builder or the developer, and there are 100 members or 100 flat buyers who have bought flat in that particular building which that particular developer is constructing, right? So when we buy the flat, now each one of you have paid for your flat as per square feet basis. You agree? That means, let's say if you're staying in Kandivali area or Borivali area, or let's say western suburb, the rates may be in the range of 15,000 to 25,000 or 30,000 or 50,000 per square feet, right? Now, if you take the ready reckoner rate means construction cost. So let's say जहां आपका बिल्डिंग खड़ा है, वो बिल्डिंग का जो लैंड है, वो लैंड पे अगर मुझे बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो आज के डेट में मुझे कंस्ट्रक्शन का खर्चा कितना आएगा? So construction cost is, let's say, around 3,000 or 3,500 per square feet, or let's say maximum 5,000 rupees, right? Now हम लोगों ने जो बिल्डर को दिया है, हम लोगों ने बिल्डर को 15,000 पर स्क्वायर फीट दिया है, या 18,000 पर स्क्वायर फीट दिया है, या 10,000 पर स्क्वायर फीट दिया है, और ये रेडी रेकनर है, ये हर साल अलग अलग चेंज होते रहता है. सो महाराष्ट्र डिपार्टमेंट मशीनरी they come out with ready reckoner rates every year. So what for you have paid this extra amount when the construction cost is only 2,000 or 2,500 or 3,000 depending upon your area? What for you have paid 15,000 or 18,000 per square feet? कभी हम लोगों ने ये सोचा है कि ये मैंने एक्स्ट्रा क्यों दिया है? Why you have given this extra is you have contributed towards the land cost, right? And you have contributed towards the profit of the builder, because builder ने काम किया है तो उसका profit भी निकालेगा वो activity का. So whatever amount we have paid to the builder, that amount includes land cost, construction cost, and the profit of the builder, right? अभी जब हम लोग बिल्डर के साथ अग्रीमेंट करते हैं, तो वो अग्रीमेंट में बिल्डर का और हमारा नाम आता है, पोजीशन का डेट आता है, एमिनिटीज आता है, सब आता है. हम लोग बिल्डिंग खड़ा हो गया, ओसी आ गया, ओसी नहीं भी आया, लेट्स से वी हैव टेकन द पोजीशन एंड वी आर स्टेइंग. Now then who has to give the consent whether that land on which my building is constructed, it should remain with the landlord and it should come to me or my society. That is what the conveyance is. Now the person, the landlord, I have already, as an individual flat buyer, I have already paid money for the land cost. So that means that right now it should come to me. Actually, I should be the owner of that property, right? Now in case of a housing society where it is a tenant co-partnership, like जो हमारा housing society होता है जहाँ builder construct करके हम लोग उसमें flat लेते हैं, that is called as tenant co-partnership. So in this case, what happens? We as a buyer, we are occupier, right? We are staying in that flat, but a housing society is constructed or housing society is being formed. Now this conveyance, when I say conveyance, so this transfer, this ownership needs to be transferred. So land and building का ownership transfer होना है. So landowner will transfer the land and the builder's right, that is development right, so that will get transferred in the name of the housing societies. That is what the conveyance is. And whenever, if any society wants to go for the redevelopment, so conveyance पहले होना चाहिए. So why conveyance should happen first, that also I will tell you. So this is what the process, I mean this is what the meaning and this is what the logic of this word conveyance. Now the question is whether it is my view. No, this is not my view. This is, we have one act
which is a parallel act. The way our society is formed under Maharashtra Cooperative Societies Act 1960, there is one act in Maharashtra जो ये रियल एस्टेट को गाइड करता है, एंड दैट एक्ट इज महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट 1963, दैट इज मोफा, राइट. तो हमारे जो एग्रीमेंट्स हुए, अभी तो खैर रेरा आ गया, राइट, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2017 से आ गया. 2016 में आया, ओनली 69 सेक्शंस वेर एप्लीकेबल. फिर 1 मई 2017 से रेरा भी फोर्स में है. तो रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्टर करना, ये सारे प्रोविजंस अभी रेरा में है. तो रेरा कायदा तो आ गया है, लेकिन रेरा से पहले जो बिल्डर या जिस बिल्डर से हम लोगों ने फ्लैट लिए, तो वो जो हमारे एग्रीमेंट थे वो मोफा के अंडर एग्रीमेंट है. तो जो एग्रीमेंट हमारे साथ बिल्डर ने किया है, सो वो इवन दैट एग्रीमेंट का फॉर्मेट इज मेंशन्ड इन मोफा एक्ट. जैसे रेरा में भी मॉडल एग्रीमेंट दिया है कि बिल्डर जब अभी फ्लैट बायर के साथ एग्रीमेंट करेगा तो उसको इसी तरह के क्लॉजेस डालने होंगे, बिकॉज रेरा क्यों आया है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द होम बायर. तो वैसे ही मोफा भी 1963 में लाया गया था टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द होम बायर्स एंड टू रेगुलेट द रियल एस्टेट इंडस्ट्री, राइट. सो इफ यू सी द मोफा प्रोविजन, दैट मींस हमारी जो एग्रीमेंट्स है, जो एग्रीमेंट्स हमारे फ्लैट के हैं जो 2017 के पहले के हैं, सो ऑल दिस एग्रीमेंट्स आर एज पर मोफा एक्ट, राइट. दोज बी एग्जीक्यूटेड अंडर मोफा एक्ट. Now, if you see the provision of section 10 of MOFA, section 10 of MOFA says कि ये promoter का responsibility है या obligation है. So who is a promoter? Promoter means the person who constructs or who causes to construct. So let's say हमारा developer है. So for a layman या आपको और हमारे लिए who is a promoter? Promoter means अपना builder. तो ये builder का obligation है, builder का responsibility है कि जैसे ही 51% फ्लैट्स उसके सेल हो जाते हैं, ही सपोज टू फॉर्म दी हाउसिंग सोसाइटी. ये प्रोविजन किसमें है? ये मोफा में प्रोविजन है, सेक्शन 10 में. तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि बिल्डर जो है कि हाउसिंग सोसाइटी भी फॉर्म करके देते नहीं है. जैसे प्रोजेक्ट 3-4 साल उसने किया, 5 साल किया, फिर लोग ओसी आया है नहीं आया है, पोजीशन ले लेते हैं, फिर वो स्ट्रगल करते कि हमको हैंडओवर भी नहीं मिला, बिल्डर तो कुछ नहीं कर रहा है, अम्यूनिटीज नहीं दे रहे. देन दे अप्रोच द कंसल्टेंट लाइक अस एंड देन वी एडवाइज देम कि सर आप इंडिविजुअली देखो. मोफा में तो बोला है कि आप उसको कंज्यूमर कोर्ट में लेके जा सकते हो, आप सिविल सूट फाइल कर सकते हो, आप उसको किसी भी अथॉरिटी के लेवल पे ले सकते हो, आप स्पेसिफिक रिलीफ स्पेशल रिलीफ कोर्ट में उसको ले सकते हो. बट देन ये सब आप इंडिविजुअली एक मेंबर करेगा और उसका पैसा खर्च करेगा, उससे अच्छा आप पहले एक नॉन कोऑपरेशन में आप एक हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म कर लो एंड वी गेट द हाउसिंग सोसाइटीज फॉर्म फर्स्ट. तो क्या होता है, लीगल एंटिटीज का स्टेटस आता है, कलेक्टिविटी आता है और सब लोग मिलके वो कॉज को आगे लेके जा सकते हैं. आपको पैसा अगर जुटाना है, कुछ लिटिगेशन बिल्डर के साथ करना है. तो पॉइंट इज कि हमारा जो बिल्डर है या प्रमोटर है, ये उसका ऑब्लिगेशन है अंडर मोफा टू फर्स्ट फॉर्म द सोसाइटी. और वो कब करना है? 51% जब उसका बुकिंग हो जाता है या सेल हो जाते हैं. अभी बिल्डर ने ये किया नहीं, तो मोफा क्या बोलता है कि जैसे ही 51%, पहले 60% था ये क्राइटेरिया, अभी रेरा के बाद में 51 किया, तो 51% जैसे ही सेल होता है, ही सपोज टू फॉर्म द सोसाइटी. और जैसे ही सोसाइटी फॉर्म होता है, within 4 months from that formation of the housing society, again it is the responsibility of the builder or the developer or the promoter under MOFA to hand over the title of the property or to do the conveyance of the property under section 11 of MOFA, right? That means MOFA Act जो है वो क्या बोलता है, सेक्शन 10 में बिल्डर को पहले हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म करके देना है, या फिर कंडोमिनियम फॉर्म करके दे सकता है, या जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बना के दे सकता है. सो प्रीफर्ड हम लोग हाउसिंग सोसाइटीज फॉर्म करते हैं. फिर 11 में, सेक्शन 11 में बोला है कि उसको कन्वेंस भी करके देना है. और ये कन्वेंस करके देना, दैट मीन्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? ये बिल्डर का है. अभी बिल्डर क्यों नहीं करते हैं? ये हाउसिंग सोसाइटी भी फॉर्म करके नहीं देगा, आप अपने से एडवांस मेंटेनेंस लेते हैं और कन्वेंस भी नहीं करके देते. क्योंकि कन्वेंस शब्द का मीनिंग क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स. आई एम यूजिंग द वर्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स. रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मींस पीआर कार्ड 7/12, राइट. सो ये जो है, ये जो हमारे तलाठी ऑफिस में यहाँ जो एंट्रीज होती है, म्यूटेशन एंट्रीज जो होती है, जैसे किसने किसको ट्रांसफर किया,
तो अगर आप आपका फ्लैट का एग्रीमेंट आप देखोगे तो फ्लैट के एग्रीमेंट के पीछे आपका एडवोकेट का एक सर्च रिपोर्ट होता है, आपका अगर जो बिल्डर है उसका कुछ पावर ऑफ अटॉर्नी उसने किसी को दिया होगा एग्जीक्यूट करने के लिए एग्रीमेंट, उसकी कॉपीज होती है, पीआर कार्ड की कॉपी होती है, प्रॉपर्टी कार्ड की कॉपी होती है। और अगर आप प्रॉपर्टी कार्ड देखोगे तो प्रॉपर्टी कार्ड में आपको वो पूरा चेन दिखता है कि ओरिजिनली मीन 100 साल पहले वो प्रॉपर्टी किसके पास था, फिर कहाँ गया, कौन है और लास्ट ओनर उसका कौन है। तो वो पूरा फ्लो अपने को वहां से समझ में आता है। और प्रॉपर्टी कार्ड से हम लोग समझ सकते हैं कि एक्चुअली इसका आज के डेट में ओनर क्या है। तो प्रॉपर्टी टैक्स आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। मुंबई सबअर्बन का आपको ऑनलाइन भी प्रॉपर्टी टैक्स मिलता है। आपको सीटीएस नंबर उसके लिए मालूम होना चाहिए। दैट मीन्स द लेआउट प्लॉट का एक हर लेआउट का एक नंबर होता है, कैडेस्ट्रियल नंबर। तो वो सीटीएस नंबर अपने को मालूम होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी कार्ड पे आप देख सकते हैं। तो ये जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है या रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दैट मीन जो लैंडलॉर्ड है उसने डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया, बिल्डर ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया, लेकिन प्रॉपर्टी कार्ड में नाम किसका है, बिल्डर का है, दैट लैंडलॉर्ड का है या फिर बिल्डर का है। और क्या होता है कि अगर आप देखोगे ये जो अप्रूवल्स है, जो कॉर्पोरेशन से अप्रूवल मिलते हैं बिल्डिंग को, ये सारे बिल्डर्स को मिलते हैं। और अगर आप देखोगे कि अगर आपकी सोसाइटी का कन्वेंस नहीं हुआ है तो आपके नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स ये भी बिल्डर के नाम से ही आते हैं, अनलेस एंड अनटिल आपने कुछ रेजोल्यूशन करके उसको इंडिविजुअल कर लिया है। तो ये क्यों होता है, बिकॉज आपकी सोसाइटी का कन्वेंस हुआ नहीं है। तो कन्वेंस मीन्स क्या, रेवेन्यू रिकॉर्ड में, दैट मीन्स इन पीआर कार्ड और इन 7/12 नेम ऑफ माय हाउसिंग सोसाइटी शुड गेट रिफ्लेक्ट। दैट मीन्स हमारी हाउसिंग सोसाइटी वहां ओनर करके वहां आनी चाहिए और बिल्डर लैंड ओनर का नाम वहां से हट जाना चाहिए। दिस इज व्हाट द कन्वेंस इज, एंड दिस कन्वेंस हैज टू हैपन बाय वे ऑफ अ deed, that is called as conveyance deed, and it is a provision as per MOFA. Now the problem is, बिकॉज जो मुझे क्वेरीज भी आई है या जब हम लोग सेमिनार लेते हैं तो लोग भी पूछते हैं कि अभी मेरा बिल्डर ही नहीं है, हमारा लैंड ओनर है वो मर चुका है, उसके लीगल हेयर्स कौन है हमको मालूम नहीं है, तो मैडम कौन करेगा, ये कन्वेंस डीड कौन बनाएगा, हमको क्या करना चाहिए। तो ये सब प्रोविजंस, ये सब जो इश्यूज हैं, ये सबको जब समझा, लाइक डिपार्टमेंटल या गवर्नमेंट मशीनरी को भी समझ में आया कि इसमें कुछ इश्यूज हैं, कन्वेंस नहीं हो पा रहा है, या ये टेक्निकल या लॉजिकल या प्रैक्टिकल इश्यूज फेस कर रहे हैं हाउसिंग सोसाइटी। तो क्या हुआ, इन 2008 दिस मोफा एक्ट गॉट अमेंडेड एंड मोफा में एक डीम्ड कन्वेंस का प्रोविजन आया, राइट। बिकॉज अभी आपके दिमाग में सबको कि कन्वेंस क्या है, डीम्ड कन्वेंस क्या है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर। तो कन्वेंस इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और द ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन, फ्रॉम द लैंड ओनर to the society. Okay, so PR card में अपने housing society का नाम आना है, that is what the conveyance. So all rights will be with the housing society, and once the housing society gets all rights as per revenue records, then only your society can go for the redevelopment, they can demolish the building, then only the society will get the approvals from the corporation. क्योंकि कॉर्पोरेशन में अप्रूवल किसको मिलते हैं, जिसका नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में है उसको मिलते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाई बिफोर गोइंग फॉर द रीडेवलपमेंट यू शुड हैव टू हैव द conveyance with you, and that is what the intention of this provisions also. Now if the builder is not, and why builders are not doing, because as I said कि ये ओनरशिप आपके पास ही रहता है, आपका ही नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आते हैं, तो राइट्स सारे आपके पास हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सोसाइटी के पास राइट्स नहीं है बट आपके लैंडलॉर्ड के पास राइट्स हैं। तो कल जब एफएसआई बढ़ेगा आपके एरिया में, जैसे डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स आते हैं, डीसीपीआर 2034 अपने को मालूम है, तो जो एडिशनल एफएसआई वगैरह आएगा, जो एडिशनल बांधकाम, एफएसआई क्या है कि आपका फ्लोर स्पेस इंडेक्स, दैट मींस पोटेंशियल ऑफ योर प्लॉट, फर्दर पोटेंशियल फॉर द कंस्ट्रक्शन। तो एक एफएसआई मींस अगर 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है तो उसमें 1000 + 1000 तो 2000 हम लोग उसमें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वर्टिकली, राइट। सो बिल्डर्स क्या करते हैं कि ये जो एफएसआई है, एडिशनल एफएसआई है, उसको मिलेगा, उसके पास रहना चाहिए, या लैंड ओनर के पास उसका राइट रहना चाहिए, इसीलिए दे डोंट गिव यू द कन्वेंस, राइट। तो ये हमको समझ के लेना है। तो यही बात जब मिनिस्ट्री लेवल पे जब रिप्रेजेंटेशन हुए, कुछ एनजीओस ने और ये रिप्रेजेंटेशन किया, तो इसमें मोफा में 2008 में अमेंडमेंट आया
और मोफा में डीम्ड कन्वेंस का एक प्रोविजन डाला गया. सो व्हाट इज डीम्ड कन्वेंस नाउ? सो देयर आर टू थिंग्स. वन इज कन्वेंस. सो हम लोग जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया तो वो कन्वेंस है. तो दैट मींस दैट विल कॉल इट एज अ रेगुलर कन्वेंस, जहां आपका लेट से बिल्डर खुद सामने आ रहा है, आपको बोल रहा है कि हाँ मुझे आपको कन्वेंस करके देना है, तो एक कन्वेंस डेट बनाते हैं, तो वो हो गया रेगुलर कन्वेंस. नाउ डीम्ड कन्वेंस इज when the builder is not cooperating, when your promoter is not cooperating, when the landlord is not cooperating, when landlord is no more. आपको उसके लीगल हेयर कौन है आपको मालूम नहीं है, आपके पास पीआर कार्ड की एंट्रीज नहीं है, तो इन दैट केस आपका मोफा एक्ट इतना ब्यूटीफुल, इतना सिंपल प्रोविजन एक्चुअली 2008 में डाला है डीम्ड कन्वेंस का. सो ये क्या बोलता है प्रोविजन, अमेंडेड प्रोविजन, कि अगर सेक्शन 10 में हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म किया बिल्डर ने या प्रमोटर ने, और सेक्शन 11 में वो सोसाइटी फॉर्म होने के बाद में 4 महीने में उसको कन्वेंस करके देना है. ये सेक्शन 11 का प्रोविजन है मोफा का. तो अगर प्रमोटर ने ये नहीं किया और किसी सोसाइटी को ये दिक्कत है कि मेरा लैंडलॉर्ड अवेलेबल नहीं है, उसके लीगल हेयर नहीं है, मेरा लैंडलॉर्ड कोऑपरेट नहीं करता है, तो जैसे नॉन कोऑपरेशन में जाके हम लोग सोसाइटी फॉर्मेशन कर सकते हैं. आपको बिल्डर की जरूरत नहीं है, प्रमोटर की जरूरत नहीं है, आप यूनाइट होके हम लोग सोसाइटी नॉन कोऑपरेशन भी फॉर्म करते हैं. तो उसी तरह आपकी सोसाइटी को डीम्ड कन्वेंस मिल जाएगा. दैट मीन्स if the builder or the promoter is not giving the conveyance within 4 months from the date of formation of the housing society, that means each and every society will be deemed to have received the conveyance. So deemed का अर्थ CS को मालूम है, deemed income, deemed rental बोलते हैं ना हम लोग कि ये माना जाएगा. deemed means माना जाएगा. तो इसी तरह आप सबको कन्वेंस मिल गया है ऐसा माना जाएगा. अभी जितनी भी यहाँ आज पार्टिसिपेंट्स हैं, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं अभी? ऑलमोस्ट 150 पार्टिसिपेंट्स, राइट? ओके, सो धरणीधर पाटिल सर हैज जॉइंड अस. सर नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार सर. हा, आपण तुम्हाला थोडंसं तुम्हाला मध्ये मी डिस्टर्ब करेन सर तुमचं सगळं व्ह्यूज घ्यायला, कारण तुम्ही डीडीआर आहात, यू रिटायर्ड ॲज अ डीडीआर फ्रॉम द कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंट आणि तुम्ही स्वतः ऍडव्होकेट आहात. सो आय विल गेट बॅक टू यू. हा, हे थोडं कंप्लीट झालं की. थँक्स फॉर जॉइनिंग सर. ओके, सो डीम्ड प्रोविजन है इसमें. सो डीम्ड प्रोविजन मीन्स क्या? ये डीम्ड है, ये माना जाएगा, राइट? So that means जितने भी आज 150 पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आपके बिल्डिंग का, सपोज आप यहाँ रहते हो आपके बिल्डिंग में हाउसिंग सोसाइटी में, और आज के डेट में आपके सोसाइटी का कन्वेंस नहीं हुआ है, तो मोफा का जो 2008 का अमेंडमेंट है वो हिसाब से आप सबको कन्वेंस मिल चुका है. तो आप ये लेक्चर क्यों अटेंड कर रहे हो, राइट? बिकॉज इट इज नॉट दैट इजी. द प्रोविजन सेज देयर इज अ डीम्ड कन्वेंस प्रोविजन. बट एज आई सेड कि सपोज मेरा फ्लैट है और मुझे बोलना है कि ये stays in 201 in Springleaf Society. Proof that I'm staying in 201. So the conclusive proof is my agreement, right? Let's say this is my agreement. Now in this agreement is there, जिसमें मेरा बिल्डर है, बिल्डर का नाम है, मेरा नाम है, मेरा एरिया है, मेरा फ्लैट है, मैंने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, मेरा फ्लैट का कॉस्ट क्या है, मेरा स्टैम्प ड्यूटी मैंने इस पे पे किया है, रजिस्टर्ड किया है, फिर मेरा इंडेक्स टू मुझे दिया है रजिस्ट्रेशन ऑफिस से. तो ये मेरा कंक्लूसिव प्रूफ है कि यस आई एम ओनिंग दैट फ्लैट, राइट? एंड वंस यू ओन द फ्लैट, what are the rights you get from the flat or for your flat? That this is now I'm discussing what are the advantages or why we should be going for the conveyance. So the advantages of my flat is I can let it out. मुझे अगर किसी को भाड़े पे देना है फ्लैट में दे सकती हूँ, मुझे अगर कभी सेल करना है मैं सेल कर सकती हूँ, मुझे किसी को गिफ्ट करना है कर सकती हूँ, अगर मुझे इस पे मॉर्गेज करना है, मुझे लोन लेना है मैं कर सकती हूँ, मुझे इसका इंटीरियर करना है मैं कर सकती हूँ. तो ये सारे राइट्स मुझे कब
मिलते हैं जब मेरे पास कोई एग्जीक्यूटेड डीड है या डॉक्यूमेंट है जो रजिस्टर्ड है। तो सेम वे मुझे डीम्ड कन्वेंस तो हर सोसाइटी को हमारे मिल गया है as per that amended provision, because that is a deemed provision, that is a fiction created by the MOFA Act. But अगर हमको कन्वेंस चाहिए तो उसका एक प्रोसेस है। वो डीम्ड कन्वेंस के लिए हमको स्टिल एक प्रोसेस फॉलो करना है और कहीं जाके एक कन्वेंस डीड हमारे सोसाइटी के हाथ में आना चाहिए जिसपे सोसाइटी का नाम आएगा, सोसाइटी के जो ऑफिस बेरर है ऑफिशियल उनका साइन आएगा और कोई होगा जो बिल्डर और डेवलपर के बिहाफ पे भी वो साइन करेगा। बिकॉज जैसे मेरा फ्लैट है तो फ्लैट का एग्रीमेंट मैंने साइन किया है और मेरे डेवलपर ने साइन किया है। तो सेम वे अगर डेवलपर मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहा है, so there is someone who needs to act as a developer or act as a owner, and they should be signing this conveyance deed, which I will be registering, on which I will be paying the stamp duty. I will be registering it with the registrar office, and then there will be changes in the revenue records, और फिर मेरी society का नाम आएगा। So who is that authority who will be executing this conveyance deed on behalf of the promoter or on behalf of this landowner or the builder, right? So section 5 of MOFA Act, it says, it talks about the competent authority, and the competent authority is district deputy registrar. अभी मैंने आपको एक DDR से इंट्रोड्यूस करवाया है, धरणीधर पाटिल सर. So he was in cooperative department, so he retired as district deputy registrar, right? So ये right किसको है? That means हर society का. So जिस area में, जिस location में आप हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप फॉल करती है आपकी सोसाइटी, वो डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार, सो ही इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर मोफा टू एग्जीक्यूट कन्वेंस डीड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रमोटर। इतने वाइड पावर्स उनको दिए गए हैं, राइट? सो दैट मीन्स हमको लैंड ओनर की जरूरत नहीं है, बिल्डर की जरूरत नहीं है, बिल्डर के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हमको साइन कौन करेगा हमारे कन्वेंस डीड पे? ये डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार जो है ये साइन करेंगे। दे आर द एम्पावर्ड और द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर मोफा, राइट? दैट मींस देयर शुड बी अ कन्वेंस डीड, देयर शुड बी सम अथॉरिटी, राइट? नाउ गोइंग वन स्टेप अहेड, तो हमको ये समझा कि कन्वेंस क्या है, मोफा में इसके प्रावधान क्या है, मोफा में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, मोफा में फॉर्मेशन है, मोफा में कन्वेंस करके देना भी ऑब्लिगेशन है। बट इसके आगे अगर हम लोग जाते हैं तो ये हमारा बायलॉ है, राइट? नाउ दिस इज माय हाउसिंग सोसाइटी बायलॉ व्हिच वी फॉलो ऑल द हाउसिंग सोसाइटीज। नाउ इफ यू सी चैप्टर क्लॉज 5 ऑफ योर ऑब्जेक्ट क्लॉज, तो ये बायलॉ में ऑब्जेक्ट है। जैसे हमारी हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म होती है तो ये बायलॉ हम लोग रजिस्टर करते हैं रजिस्ट्रार के पास, जिसके पास हमारा सोसाइटी रजिस्टर हुआ है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या डेप्यूटी रजिस्ट्रार। तो एक बायलॉ का कॉपी वो लोग हमको सील करके वापस देते हैं और ये हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन बन जाता है। ये इसके हिसाब से ही हमारा फंक्शनिंग होता है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट क्लॉज देखोगे टेनेंट को पार्टनरशिप सोसाइटी का, तो इट सेज फर्स्ट ऑब्जेक्ट कि हम लोग सारी ये सोसाइटी फॉर्म क्यों कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द housing society to form or get form is to get the conveyance from the builder, to get the conveyance from the developer. That means मेरा housing society हम लोग फॉर्म कर रहे हैं कि conveyance लेने के लिए। फिर उसके बाद में और दो चार जो ऑब्जेक्ट्स हैं कि हमको सब में सबको साथ रहना है, कल्चरल एक्टिविटीज करनी है, हमको मेंटेनेंस करना है प्रॉपर्टीज का, बिल्डिंग का, ये वो सब, वो सारे ऑब्जेक्ट वो बाद में आते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है? कन्वेंस का है। That means my society is registered with cooperative department or with a registrar with an object to get the conveyance from the builder or the promoter as my primary object. And that is why in each and every audit report your auditor keeps on commenting conveyance not done, conveyance not done, and every year हम लोग क्या करते हैं? मैनेजिंग कमिटी, conveyance will be done, conveyance will be done, conveyance shall be done, it is initiated, it is in process। और ये क्या हो जाता है? AGM to AGM, ऑडिट टू ऑडिट मुद्दा रह जाता है। ये AGM में लिया, मेंबर्स ने बोला नहीं ये कंसल्टेंट का फीस बहुत ज्यादा है,
ये स्टैम्प ड्यूटी नहीं भर रहा है तो हम लोग क्यों भरे, है ना। तो ये मुद्दा नेक्स्ट ईयर को वो रोल ओवर हो जाता है, एंड दिस इज द रीजन कन्वेंस इज नॉट हैपनिंग. बट I will caution all the managing committee members who are participants of this seminar that there is no choice for you. It is not कि मैं हम लोग देखेंगे, हमको जब लगेगा तब हम लोग ये एजेंडा लेंगे, ऐसा नहीं है. It is there is no option. It is must for you because आपका ये जो बायलॉ है ये फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है, और हम लोग मैनेजिंग कमेटी मेंबर हैं. तो जिस ऑब्जेक्ट के लिए मेरी सोसाइटी फॉर्म हुई है वो ऑब्जेक्ट अगर आप नहीं कर रहे हो तो एक्चुअली there should be an audit comment by all the auditors who are there as a participant. You should comment it in part A, which is a serious irregularities. कि जिस पर्पस के लिए खुला है या सोसाइटी बना है वो पर्पस ही नहीं पूरा हो रहा है, राइट. सो ये सीरियस है, एंड ईच एंड एवरी मेंबर दे शुड टेक इट कि ये ऑप्शनल नहीं है, और जितना आप इसको डिले करोगे तो उसकी प्रॉब्लम्स भी क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. So committee members should take it. This is their responsibility. और ये बायलॉ में कन्वेंस पे और रीडेवलपमेंट में भी एक चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है. So उसमें बोला गया है कि it is a responsibility of the managing committee to go for the conveyance, right? Now जब मैनेजिंग कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो 8, 10, 11, 15 लोग तो खुद ऐसे नहीं है, they can't dance on their own ना. They have to take everybody with them, right? सब जनरल बॉडी का इसको रेजोल्यूशन लगता है. अगर कमेटी मेंबर्स के हाथ में होता तो कभी का कन्वेंस कर चुके होते आपके सोसाइटी का. बिकॉज तुम्हारा बायलॉ ये भी बोलता है कि कुछ भी अगर मेजर डिसीजन लेना है मैनेजिंग कमेटी को तो वो जनरल बॉडी अप्रूवल से लेना है. तो जनरल बॉडी का अप्रूवल लेना है, एंड यू आर सुप्रीम अथॉरिटी एज ए जनरल बॉडी अंडर सेक्शन 72 ऑफ MCS एक्ट. जो जनरल बॉडी बोलती है वो फाइनल है. तो जनरल बॉडी को भी आप जो अभी जो नॉर्मल मेंबर्स हैं इस सेमिनार में या ये सेशन में जो कमिटी मेंबर्स नहीं है बट यू आर रेगुलर मेंबर, तो आपको भी ये सोचना है कि जब मैंने फ्लैट बाय किया है और ये लैंड का कॉस्ट भी मैंने बिल्डर को दिया है तो मेरे सोसाइटी के नाम से क्यों नहीं कन्वेंस हो रहा है. ऑलरेडी ये हो जाना चाहिए. तो आपको ये इसको थोड़ा सा पॉजिटिवली लेना है. ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्सरी है. क्योंकि जो मेंबर यहाँ से मुंबई से हैं और स्पेशली जो बोरीवली एरिया से हैं उनको मालूम होगा लक्ष्मी छाया बिल्डिंग, इट्स अ एक्सक्लूसिव केस और सीन एवरीबॉडी हैज सीन कि लक्ष्मी छाया बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी. वो बिल्डिंग का कन्वेंस नहीं हुआ था. सारे राइट्स प्रमोटर या डेवलपर के पास थे, लैंड ओनर के पास थे, और जस्ट टू रिकंस्ट्रक्ट, क्योंकि अभी बिल्डिंग अगर गिर गई है तो जो मेंबर्स हैं तो सोसाइटी तो नहीं गिरती है, सोसाइटी तो रिकॉर्ड पे वैसे ही थी हाउसिंग सोसाइटी, लेकिन जो मेंबर्स हैं मेंबर्स के घर सारे गिर गए, बिल्डिंग पूरी कोलैप्स हो गई. अभी वो बिल्डिंग को जब रिकंस्ट्रक्ट करना था तो उनको 1.5 करोड़ रुपया देना पड़ा वो बिल्डर को, उस लैंडलॉर्ड को, जस्ट टू गिव द परमिशन और NOC टू रिकंस्ट्रक्ट दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग, राइट. So it is that important. That means वो rights, वो building के development rights हमारे पास आने, हमारे housing society में आने काफी जरूरी है. और ये हर मेंबर को ये समझना है कि ये करना हमारे लिए अच्छा है, राइट. बाद में जाके इसमें हम लोग लाखों करोड़ों डाले, उससे अच्छा पहले ही अगर हम लोग इसको समझ ले तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा. सो एडवांटेजेस क्या है कि अगर हमारा हाउसिंग सोसाइटी का कन्वेंस अगर होता है, ओनरशिप हमारे पास आ जाएगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में हमारे नाम आ जाएंगे, तो हम लोग रीडेवलपमेंट कर सकते हैं. हम लोग बिल्डिंग, आपको सेल्फ रीडेवलपमेंट जाना है, मॉर्गेज करना है, जो कुछ भी है सारे राइट्स अपने पास रहेंगे. कल अगर सपोज DCPR में एडिशनल FSI आता है तो सारा FSI, एडिशनल FSI या हाउसिंग सोसाइटी के पास आएगा, आपके बिल्डर के पास नहीं आएगा. एंड दैट इज व्हाई यू शुड बी गोइंग फॉर द कन्वेंस, राइट. Now, what is the process of the conveyance? कन्वेंस और टीम कन्वेंस का आपको मीनिंग समझा. सो जब आपका बिल्डर एकदम कोऑपरेट कर रहा है, उसको मालूम है कि मोफा में उसको कन्वेंस करके देना है, ये उसकी जिम्मेदारी है, तो वो खुद आगे आएगा. या आपने सपोज हाउसिंग सोसाइटी ने एक लेटर लिखा, पहले प्यार भरा लेटर लिखा, फिर और एक दूसरा प्यार भरा लेटर लिखा, फिर तीसरा हम लोगों ने एक लीगल नोटिस सर्व किया कि भैया अंडर मोफा ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका ऑब्लिगेशन है. और फिर भी अगर वो नहीं आपको कोऑपरेट कर रहा है तो आपको
मूफा में ही डीम्ड कन्वेंस का ऑप्शन है, और डीम्ड कन्वेंस में जैसे मैंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। तो अभी इसको करना कैसे है? सो नाउ आई एम ऑन दी डीम्ड कन्वेंस पार्ट, कि हमको करना है तो कैसे करना है। तो अगर सपोज अज्यूम करते हैं फॉर टाइम भी कि आपका बिल्डर भले ही उसने 4 साल पहले 10 साल पहले आपको कन्वेंस करके नहीं दिया, बट अगर आपके बिल्डर के साथ आपके रिलेशन आज के डेट में भी अच्छे हैं, आपकी सोसाइटी ओल्ड सोसाइटी है, आप रीडेवलपमेंट में जाना चाहते हो, तो आई वुड एडवाइज कि फर्स्ट अपने को रेगुलर कन्वेंस, दैट मींस बिल्डर कोऑपरेशन में अगर कन्वेंस होता है तो ये नथिंग लाइक दैट, बिकॉज यू विल बी सेविंग ऑन द ह्यूज कॉस्ट एंड टाइम आल्सो। जो टीम कन्वेंस में उसमें टाइम जाता है और पैसा भी लगता है। तो रेगुलर कन्वेंस इज ऑलवेज एडमिसिबल। मेरे पास जब क्लाइंट आता है तो मैं सबसे पहला मेरा इंटेंशन वही होता है कि मैं उनको बोलती हूँ कि सर अगर रेगुलर कन्वेंस पॉसिबल है, सो लेट्स पुट अ लीगल नोटिस, लेट्स पुट अ लेटर, and if it is not happening and if you feel that you are not comfortable with the builder or your builder will not come forward or the landlord will not come forward, then we'll go for the deemed conveyance option। और थोड़ा सा फिर ये जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के, उनको भी अच्छा लगता है कि यस हम लोगों ने पहले कन्वेंस का नॉर्मल रूट अप्लाई किया, एक्सप्लोर किया, और बिल्डर वैसे भी अपना लैंड ओनर वैसे भी अपने को कोऑपरेट नहीं करता है, तो अपने को डीम्ड कन्वेंस में ही जाना है। तो आपके मेंबर जो है फिर वो क्लियर हो जाते हैं कि डीम्ड कन्वेंस के सिवा अभी दूसरा कोई रास्ता है नहीं। तो इस तरह से रेगुलर कन्वेंस को आप कर सकते हैं। अगर सपोज रेगुलर कन्वेंस हो रहा है, दैट मींस आपका बिल्डर लेट से 10 साल के बाद 12 साल के बाद या मेरा ये लेक्चर सुनने के बाद में लेट से आपकी हाउसिंग सोसाइटी को लगा कि नहीं हम लोग ये एक्सप्लोर करते हैं बिल्डर के साथ और हमारा बिल्डर अभी भी अच्छा टर्म्स है, वो हमको कोऑपरेट करता है, इनफैक्ट वो खुद अभी सामने आ रहा है, तो आप लेटर लिखो। और अगर सपोज कन्वेंस हो रहा है तो देन इन दैट केस he will be giving you the conveyance deed। तो वो एक conveyance deed बना के देगा, राइट, जो डीम्ड कन्वेंस में बाद में आता है। तो पहले तो मैं अभी आपको रेगुलर कन्वेंस के बारे में पहले बताती हूँ। तो बिल्डर आपका एग्री है, आपका लैंड ओनर एग्री है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपके टर्म्स अच्छे हैं, तो आपको डीम्ड में जाने की जरूरत नहीं है, आप उनको अप्रोच करो। अगर वो रेडी है तो वो लोग आपको कन्वेंस डीड बना के देंगे। वो कन्वेंस डीड ऑलवेज यू शुड गेट इट वेटेड। तो जैसे हम लोग भी कन्वेंस डीड का वेटिंग करके देते हैं। वेटिंग करके देना मींस बिल्डर ने वहां जो लिखा है, जो क्लॉजेस डाले, जो टर्म्स एंड कंडीशंस डाले, वो सारे हम लोग चेक करते हैं विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। एक सैंपल एग्रीमेंट लेके उसने प्रॉपर एरिया अपने को कन्वे करके दिया है या नहीं दिया है, कुछ ऐसा ओनरस क्लॉज डाला है क्या जिससे सोसाइटी को आपकी प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम लोग भी उसका वेटिंग करके देते हैं। तो ये कन्वेंस डेट का वेटिंग आप करो, दोनों बाजू से वो अप्रूव करो, लाइक बिल्डर की तरफ से। तो अगर हम लोगों ने कुछ उसमें चेंजेस उनको सजेस्ट किए और बिल्डर ने वो इनकॉर्पोरेट कर दिए, वापस हम लोग एक बार उसको गो थ्रू करेंगे, रिव्यू करते हैं, और फिर हम लोग एक गो सिग्नल देते हैं कि यस सर नाउ यू कैन प्रोसीड विद द कन्वेंस डीड, स्टैम्प ड्यूटी, एडजुडिकेशन और द रजिस्ट्रेशन पार्ट। तो ये हो गया आपका रेगुलर कन्वेंस का फर्स्ट स्टेप। तो रेगुलर कन्वेंस में जहां बिल्डर कोऑपरेट करता है, उसमें फर्स्ट स्टेज शुरू होता है आपका लेटर लिखने से, लीगल नोटिस लिखने से, या फिर डायरेक्ट कन्वेंस डीड बनाने से। ठीक है, तो अगर मुझे कन्वेंस का प्रोसेस बोलना है तो प्रोसेस है कन्वेंस डीड, स्टैम्प ड्यूटी एंड एडजुडिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डीड। जैसे मेरे फ्लैट का एग्रीमेंट है, हम लोगों ने वो ड्राफ्ट किया, मैंने और बिल्डर ने उस पर साइन किया, बट साइन कब होता है? बाद में होता है। पहले हम लोग स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं, तो हमारा जो एरिया है वो मार्केट का क्या रेट है वो हिसाब से हम लोग स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं, ऑनलाइन स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं, फिर हम लोग एग्रीमेंट पे साइन करते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन होता है। तो सेम वे जहां रेगुलर कन्वेंस होगा उसमें बिल्डर आपका कन्वेंस डीड बनाएगा, उसका आप वेटिंग करके लोगे, कन्वेंस डीड हम लोग फाइनल करेंगे, फिर उसका मार्केट वैल्यूएशन क्या है, तो इसमें लाइक कितने मेंबर्स ने, सारे मेंबर्स के पास इंडेक्स 2 है क्या, या किसी मेंबर ने स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा है, किसी ने एग्रीमेंट, उसके फ्लैट के एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं किए, तो वो मेंबर का शायद स्टैम्प ड्यूटी का प्रॉब्लम आ सकता है। तो वो मेंबर का अगर स्टैम्प ड्यूटी पे हो गया तो आपका स्टैम्प ड्यूटी हो गया, अदरवाइज 100 रुपीज का स्टैम्प ड्यूटी हर मेंबर का लगेगा जिसके इंडेक्स 2 है या जिनके एग्रीमेंट्स रजिस्टर्ड हैं या स्टैम्प हैं। तो 100 रुपीज पे भी आपका कन्वेंस डेट हो जाएगा, 100 रुपीज इंटू नंबर ऑफ मेंबर्स। तो ये आपका स्टैम्प ड्यूटी एडजुडिकेशन हो गया। और जैसे ही आपका स्टैम्प ड्यूटी हो गया, फिर आप वो कन्वेंस डेट लेके रजिस्ट्रार ऑफिस में जाओ, सब रजिस्ट्रार ऑफिस जहाँ वो कन्वेंस डेट रजिस्टर्ड होगा। एक बार कन्वेंस डेट रजिस्टर्ड हो गया, फिर आप जाओगे तलाठी ऑफिस और वहां आप जाके इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जैसे पीआर कार्ड में नाम चेंज करने का जो प्रोसेस है वो रहेगा। तो ये जो प्रोसेस है
ये आपका होगा रेगुलर कन्वेंस में, और ये यू कैन टेक इट मे बी 6 months or 8 months. It will take because lot of legwork or follow up is needed at each and every stage in the conveyance process when it is a regular conveyance or deemed conveyance. So regular conveyance में आपको किसी अथॉरिटी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको डीडीआर के पास नहीं जाना होता है, आपको बिल्डर के पास जाना है, आपके प्रमोटर के पास जाना है, कन्वेंस डीड, उसका वेटिंग, उसको फाइनल करो, स्टैम्प ड्यूटी अगर आता है तो स्टैम्प ड्यूटी पे करो, उसको रजिस्टर करो, और पीआर कार्ड में नाम चेंज करने के लिए आप कर दो। पीआर कार्ड में नाम चेंज हो गया, फिर आप आपके प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, हर जगह आप नाम चेंज कर लो, तो ये आपका कन्वेंस हो गया। दैट मीन्स प्रॉपर्टी कार्ड में नाम आ गया, दैट मीन्स दैट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ दैट द कन्वेंस इज डन. Now I will discuss the process flow because there was one mail also that we should discuss the process flow. So without that this session cannot be completed. So process flow anyway I have to discuss. Now what is the process under deemed conveyance? तो जैसे मैंने बोला कि रेगुलर कन्वेंस है, रेगुलर कन्वेंस में हम लोगों ने बिल्डर को अप्रोच किया, बेचारा कोऑपरेट कर रहा है, मे बी लेट लतीफ है, देर आए दुरुस्त आए, चलो मैंने 10 साल नहीं करके दिया लेकिन अभी तो करके दूं, ऐसे करके उसने आपको करके दिया, तो आप हैप्पी हो गए कि चलो कंसल्टेंट का पैसा बच गया भैया, नहीं तो इतने सारे कोटेशंस आए, लोग क्या क्या कोट करते हैं, यू नो. बट अगर आपका बिल्डर कोऑपरेट ही नहीं कर रहा है, आपका लैंड ओनर ही जिंदा नहीं है, लीगल हेयर नहीं है, तो अपने को ऑप्शन क्या है, डीम्ड कन्वेंस का. तो डीम्ड कन्वेंस जो है ये एक ऑनलाइन प्रोसेस है. ऑनलाइन प्रोसेस इन द सेंस हमारा जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है उसका एक वेबसाइट है mahasahkar.maharashtra.gov.in. तो ये महासहकार वेबसाइट पे डीम्ड कन्वेंस प्रणाली करके, दैट मीन्स एक मॉड्यूल है. तो डीम्ड कन्वेंस का जो एप्लीकेशन है ये हमको ऑनलाइन करना होता है. इसकी ऑफिशियल फीस 2000 की है, कोर्ट फीस, और सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जैसे इसमें हमारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मैनेजिंग कमेटी रेजोल्यूशन, जनरल बॉडी रेजोल्यूशन, हु इज ऑथराइज्ड उसके लिए लगेगा, लिस्ट ऑफ मेंबर्स लगेगा, हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, एग्रीमेंट का कॉपी लगेगा, एक पीआर कार्ड का कॉपी लगेगा, ओसी का कॉपी लगेगा, आईओडी का कॉपी लगेगा, बीसीसी रहेगा तो उसका कॉपी लगेगा, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, तो प्लान लगेगा, सीटीएस प्लान लगेगा. तो ये सारे जो आपके लैंड एंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग रिलेटेड जो अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स हैं या सोसाइटी या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे हमको उसके साथ अटैच करने, सारे हमको लगेंगे, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लगेगा, राइट. तो ये हमको ऑनलाइन मोड में वहां सबमिट करने होते हैं. तो ये प्रपोजल जाता है डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास, फिर वो लोग देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स का अपना स्क्रूटिनी होता है. तो स्क्रूटिनी में अगर कुछ निकले डॉक्यूमेंट्स कि आपने सपोज ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, या फिर ये गलत है, यहाँ ये नहीं मेंशन है, आपका एरिया मिसमैच हो रहा है, या व्हाटएवर, या आपने अप्रूव्ड कॉपी, या आपने रेजोल्यूशन सबमिट नहीं किया, या आपने ओसी नहीं किया, या व्हाटएवर, तो उसमें ये जो फॉर्म है 7 नंबर फॉर्म में आपको अपलोड करना होता है. और फॉर्म नंबर 8 में आपको नॉर्मली उसका डेफिशिएंसीज का एक मेल आएगा कि ये इतने इतने डॉक्यूमेंट्स आपके मिसिंग है, या ये डेफिशिएंसीज हैं आपके एप्लीकेशन में, तो आपको वापस वो सारा प्रोसेस करके यू हैव टू री अपलोड, राइट. सो ये हो गया ऑनलाइन हमको डालना है. बट ऑफलाइन ऑल्सो आपको डिपार्टमेंट में इसकी कॉपी सबमिट करनी पड़ती है. और जब आप ये कन्वेंस का एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार में कर रहे हो, दैट मींस इट इज एज गुड एज एक लिटिगेशन जैसा है. अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो एप्लीकेंट कौन होगा, सोसाइटी होगी, और जो रिस्पोंडेंट है या जो ओपोनेंट है, तो हम लोग ऐसे नहीं कि हम लोग खुद जाके नहीं अभी हमको दे दो क्योंकि वो तो नहीं आ रहा है, बिल्डर तो नहीं आ रहा है. तो डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार ही इज एम्पावर्ड अंडर मोफा. बट हमारा जुडिशियल सिस्टम है इंडिया में, बराबर है, एवरीबडी शुड इज अ नेचुरल जस्टिस, everybody, because there are advocates also in this session, right, and I am in advocate in process, right. So it's a judicial process. So judicial process means kya hai isme, natural justice, everybody should get an opportunity of being heard. कि अगर सोसाइटी बोल रही है कि हमको इतना एरिया चाहिए, ये हमको मिला नहीं, इसने किया नहीं, वो नहीं किया, तो सामने वाला भी वो काउंटर आर्ग्यूमेंट देगा, उसका वर्जन देगा, उसका रिप्लाई देगा कि उसने क्यों करके नहीं दिया, क्या प्रॉब्लम है, तो उसको भी सुन के लेना है. दिस इज दी everywhere. I mean, it's not only when it is deemed conveyance, any application, or whenever you are raising any litigation as such. तो इसमें जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स या इन द सेंस जितने भी ओनर्स हैं,
डेवलपर है, उनके लीगल है, जितने भी आपको पॉसिबल है, पीआर कार्ड से जितने भी अपने को मिलते हैं सबको हम लोग पार्टी बनाते हैं अपोनेंट्स को। अगर सपोज आपका लार्जर लेआउट है और 2-4 बिल्डिंग है तो उसमें कैसे होगा, दैट इज अनदर इशू। तो एक ऑलरेडी बिल्डिंग टीम कन्विंस कर रही है तो उसने शायद आपको पार्टी किया होगा, बिकॉज इट कम्स टॉकिंग अबाउट दी हाउ द एरिया इज टू बी डिवाइडेड। तो जब आप करोगे तो आप भी वो 3 सोसाइटीज को पार्टी करोगे तो उनको भी पार्टी करना पड़ेगा। इट्स लाइक फेयर जस्टिस, एवरीबडी शुड गेट चांस एंड देयर शुड नॉट बी एनी ऑब्जेक्शन। तो ऐसे ना हो कि कल डीडीआर ने ऑर्डर पास किया और उसको चैलेंज किया, तो इतना सब करने के बाद में अगर डीडीआर ने ऑर्डर दिया तो वो चैलेंज होने ही वाला है, वो हो सकता है, बिकॉज अगेन एज आई सेड इट्स अ जुडिशियल प्रोसेस। सो अगर किसी के अगेंस्ट वो ऑर्डर जाता है तो वो चैलेंज हो सकता है, हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकता है आपका बिल्डर डेवलपर, जिसको किसी को चैलेंज करना है। So the process is now what the DDR will do, वो सब देखेंगे, फिर वो पब्लिक नोटिस देने को बोलेंगे न्यूज़पेपर में, 2 लीडिंग न्यूज़पेपर में उसका पब्लिक नोटिस दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे टीम कन्विंस का एप्लीकेशन DDR के यहाँ हुआ है, तो अगर किसी को इसमें ऑब्जेक्शन है तो वो उसका हमको एक प्रूफ देना पड़ता है। सारे जितने भी अपोनेंट्स हैं उनको हमको कॉपी सर्व करनी पड़ती है एप्लीकेशन के अलॉन्ग विद ऑल दी एनेक्सर्स। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिस में उसकी हियरिंग लगाई जाती है। सो व्हेन आई से हियरिंग मींस क्या है कि डीडीआर अपने को एक डेट देते हैं, जैसे कोर्ट में होता है कि हियरिंग का डेट मिलेगा कि ये तारीख को आपको आके सामने उनके एक्सप्रेस करना है कि आपने एप्लीकेशन क्यों किया, कितना एरिया है, क्या मिलना चाहिए, क्या है। सामने वाला उसका एडवोकेट आएगा या उसका रिप्रेजेंटेटिव आएगा, उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा, वो बताएगा कि क्या इश्यूज हैं। तो फिर हमारा जो एप्लीकेशन उसमें वो रिप्लाई देंगे, फिर उनके रिप्लाई पे वापस हमारा रिजॉइंडर जाएगा या हमारा रिटर्न सबमिशन जाएगा। फिर इसी तरह से ये मीटिंग्स या हियरिंग्स होते रहेंगी, वहां हमारा रिकॉर्ड होता है किसने अटेंड किया, रोजनामा लिखा जाता है। फिर उसके बाद में डीडीआर एक फाइनल डेट देते हैं कि ठीक है अभी सबका तुम्हारा राइटिंग में झगड़ा करना, आई मीन व्हाट यू कैन से रिटन आर्ग्यूमेंट्स हो गया, अभी मैं आपको एक डेट देता हूँ ओरल आर्ग्यूमेंट्स के लिए। फिर जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं फ्रॉम बोथ द साइड्स या जितने भी लोग हैं उनके हर किसी के, तो ओरल आर्ग्यूमेंट का एक डेट होता है और बाद में फिर ये क्लोज फॉर ऑर्डर हो जाता है कि वो सबका सुन के लेते हैं और फिर बोलते हैं कि नाउ टुडे आई मीन इट इज क्लोज फॉर ऑर्डर। और फिर 1 महीना या 1.5 महीने में अपने को कन्वेंस का ऑर्डर आता है, राइट। सो हियरिंग होता है और मोफा में दैट मींस ये प्रोसेस जो है टीम कन्वेंस का प्रोसेस एंड द राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट भी है, जो दोज हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो थोड़ा सा अपने को अलाइड लॉज भी मालूम होना चाहिए, जैसे एनसीएस एक्ट मालूम होना है, मोफा मालूम होना है, स्टैम्प ड्यूटी की रजिस्ट्रेशन, आरपीआई, राइट टू पब्लिक सर्विस, एमआरटीपी, राइट। तो ये राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट में भी लिखा है कि कितना टाइम लगना है, कितने दिन में ये होना चाहिए। तो टीम कन्वेंस का प्रोसेस 6 मंथ्स का अपना टाइम है। सो जो डीडीआर ऑफिस से जो कन्वेंस का ऑर्डर आएगा, सो दैट मीन्स हम लोग डीडीआर को अप्रोच कर रहे हैं टू गेट द ऑर्डर फॉर द एरिया। सो डीम्ड कन्वेंस का ऑर्डर फर्स्ट इशू करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो पावर है वो डीडीआर के पास है। तो ये सारा हमारा एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, आर्ग्यूमेंट्स, रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स, ये सब देख के एक स्पीकिंग ऑर्डर होता है। स्पीकिंग ऑर्डर मीन्स एक राइटिंग में रीजंड ऑर्डर होता है। तो जैसे वो पूरा लिखते हैं कि ऐसे ऐसे एप्लीकेशन हमारे पास आया, ये सोसाइटी ने किया, ये इतने लोग थे, इतनी पार्टीज थी, शिल्पा शिंगारे ने ऐसा आर्ग्यू किया, इन्होंने ऐसा बोला, हम लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया और फाइनली जाके मुझे ऐसे लगता है आणि माझा आदेश, आणि आदेश फिर वो ऑर्डर आता है और ऑर्डर में फिर वो लिखते हैं कि कितना एरिया कन्वे ये सोसाइटी को किया है उनके आदेश के अनुसार। अभी ये आदेश आने के बाद में वो अपने को एक कन्वेंस डीड बनाने को बोलेंगे। तो कन्वेंस डीड हमको एक ड्राफ्ट करना है जो हमको डिपार्टमेंट से वेटिंग करवा के लेना है। फिर वो हमको एक लेटर देते हैं, ड्यूली सील्ड एंड स्टैम्प लेटर देते हैं, एड्रेस टू द कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स। तो जो कन्वेंस डीड हम लोगों ने ड्राफ्ट किया है बेस्ड ऑन दैट कन्वेंस ऑर्डर एंड द एप्लीकेशन, वो हमको लेके जाना होता है कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स में for the adjudication process. So now we are on the second stage of the dim conveyance. तो पहले मेरा एप्लीकेशन हुआ, उसमें मुझे कन्वेंस ऑर्डर मिला, अभी मेरा सेकंड, फिर मैंने कन्वेंस डीड बनाया, दैट इज माय सेकंड स्टेज। नाउ वी आर ऑन द थर्ड स्टेज, दैट इज एडजुडिकेशन। तो एडजुडिकेशन दैट मींस कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स में हमको वापस उसमें वापस एक प्रोसेस है। सो वो सारे लोगों के एग्रीमेंट, जितने भी फ्लैट ओनर्स हैं, सारे ओनर्स के
इंडेक्स 2, जिनके इंडेक्स 2 नहीं उनके ओरिजिनल एग्रीमेंट्स, अगर अप्रैल 2012 के बाद का अगर किसी का ट्रांसफर है तो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज पर द सर्कुलर, ये सारा आपको वहां सबमिट करना है। फिर एक शीट हमको कंट्रोल शीट वहां सबमिट करनी होती है। all the documents should be certified, all the property related, that is OC, CC, IOD, जो कुछ भी है, लेआउट प्लान जो हम लोगों ने एप्लीकेशन में लगाया वो वापस वहां भी जोड़ना है आपको, वहां सबमिट किया जाता है। और एडजुडिकेशन में वो लोग देखते हैं कि इसमें कुछ स्टैम्प ड्यूटी का कुछ इफेक्ट आता है क्या। तो स्टैम्प ड्यूटी, अगर लेट्स से देयर आर 50 members or there are 30 members in the housing society and all the members have paid their stamp duties for their flats, everybody has registered their flat, then in that case there would be 100 rupees per unit, उतना ही आपका स्टैम्प ड्यूटी आएगा। और रजिस्ट्रेशन वुड बी 1% और मैक्सिमम 30,000 फॉर योर कन्वेंस डीड। अगर किसी मेंबर ने सपोज स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा है या रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो केस में स्टैम्प ड्यूटी का इम्पैक्ट आएगा। तो आज का जो रेकनर का रेट है वो रेट लेके उसका स्टैम्प ड्यूटी आ सकता है और वो मेंबर को वो स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा। और वो भरने के बाद में अभी ऐसे भी पॉसिबल है कि मेंबर रेडी नहीं है, तो इन दैट केस द पॉसिबिलिटी कैन बी यू कैन टेक अ रेजोल्यूशन इन दी सोसाइटी, जनरल बॉडी रेजोल्यूशन सेइंग दैट जो कुछ भी स्टैम्प ड्यूटी का कॉस्ट वो पर्टिकुलर एक या दो मेंबर का आता है वो सोसाइटी बेयर करेगी और बाद में उनके मेंटेनेंस थ्रू वो रिकवर किया जाएगा। सो एटलीस्ट कन्वेंस का प्रोसेस ये हॉल्ट नहीं होगा, अदरवाइज दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई कन्वेंस इज नॉट हैपनिंग, राइट। सो लेट्स से एडजुडिकेशन आपने किया या कोई डॉक्यूमेंट्स है जो 10 दिसंबर 1985 के पहले के हैं, क्योंकि ऐसा भी है 1985 में लोगों ने 5 रुपया या 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे तभी एग्रीमेंट्स किए हैं, because that time the stamp duty was not supposed to be paid or they were adequately paid, right? So but the condition was this, those members who are paying 5 rupees or 10 rupees, they will be paying the stamp duty at the time of conveyance was the circular or notification at that time. That means those members जिनका फ्लैट 1985 के पहले का है, ऐसा कोई मेंबर आपके सोसाइटी में है और उन्होंने 5 या 10 रुपए पे अगर ये किया है, तो अभी एडजुडिकेशन का भी एक एमनेस्टी स्कीम, आई मीन स्टैम्प ड्यूटी का एक एमनेस्टी स्कीम आ गया था, तो उसमें भी उन्होंने ये 1985 के डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए क्योंकि वो बोलते हैं कि आपको कन्वेंस के टाइम भरना है। तो वो मेंबर का कन्वेंस करते वक्त उसको पैसा भरना पड़ेगा स्टैम्प ड्यूटी का। अगर वो प्रूफ करते हैं कि 1985 से वो ये फ्लैट में रहते हैं, उनका बैंक स्टेटमेंट, पासबुक की एंट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, रेशन कार्ड, अगर इफ ही इज एबल टू प्रूव दैट ही इज स्टेइंग इन दैट प्रॉपर्टी सिंस 1985, सो दैट टाइम का रेट उनको मार्केट वैल्यू एप्लीकेबल होगा। तो ऐसा भी एक 2012 का अपना सर्कुलर है, राइट। सो सर्कुलर के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी वुड बी पेड एज ऑफ दैट ओल्ड रेट, that circular is there, provided you are able to justify that you are staying in that property, and you should be able to give the documentary evidences, and documentary evidence means government recognized documentary evidences हमको उसमें देने हैं। तो ये अपना सपोज एडजुडिकेशन का स्टेज हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे और रजिस्ट्रार ऑफिस में उसका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में ऑफ कोर्स the signature on behalf of the developer or the landowner would be done by the DDR. So DDR, they are specifically exempt from appearing in the registrar office by way of a notification or gazette, so they need not accompany. तो वो साइन करेंगे और हमारी तरफ से हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से जो रेजोल्यूशन है चेयरमैन सेक्रेटरी, तो दे साइन दी कन्वेंस डीड और वो रजिस्टर्ड हो जाता है। Then we get the registered deed का copy, we get the index 2 for the registered conveyance, and then you can take it. Then the next step is to approach the city survey office or the talati office to get the name change in the revenue record. That is PR card में मेरा ये नाम चेंज होना, ये मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा। और उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, एप्लीकेशन दो, अपना कन्वेंस डीड का कॉपी दो, रजिस्टर्ड कॉपी दो, अपना ओसी वगैरह जो कुछ भी है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस वहां सबमिट करो, एंड देन वी कैन गेट दी name change in the property card. Now end to end the timeline if you ask, so conveyance order, it as per the let's say government guideline, it says it takes 6 months, but practically you have to go, because अभी जैसे कोविड जैसा सिचुएशन है, अभी 3-4 महीने से हियरिंग्स नहीं हो पा रही हैं, so you cannot strictly go कि 6 महीने में ही होना चाहिए ना, so that या फिर डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स हैं वो उनको काफी अदर ड्यूटीज भी होती हैं, देयर आर डेप्यूटेड और स्पेशल ड्यूटीज होती हैं, उनको इलेक्शंस होता है या असेंबली इलेक्शंस है या कई कोऑपरेटिव बैंक्स के इलेक्शंस होते हैं, सो दे आर एनग्रॉस्ड इन दोस गोल्स।
So practically you can take it as 7 to 8 months भी लग सकता है for the conveyance order. Then आपका adjudication है, उसमें again it takes more than 3 months, 4 months, 6 months even. I mean it's a lot of follow up. What kind of rapport you have with the departmental officials there, that also matters. And then again at the city survey office level, another 3 months or 4 months minimum you can take. So end to end process you can say 1 साल या 1.25 साल या 1.5 साल का ये डीम कन्वेंस का प्रोसेस होता है. So वही अगर आप रेगुलर कन्वेंस में जाते हो तो उसमें ये अपना 6-8 महीने का प्रोसेस कम होता है. And then the consultants they quote you, so that means that cost of the consultant is another area which we are not going to discuss as such, right? Now the next point is, let's say there are 3-4 societies on a plot, as I said. तो इसका कन्वेंस कैसे हो सकता है, या फिर इंडिविजुअल सोसाइटीज वेदर वी कैन गो फॉर द कन्वेंस. तो इंडिविजुअल सोसाइटीज, यस देयर इज नो हार्म, यू कैन वेरी वेल गो फॉर द कन्वेंस. देयर इज माजदा कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक केस लॉ भी है, तो उसमें कुछ इशू नहीं है, इंडिविजुअली यू कैन गो. बट MCS एक्ट भी अमेंड हुआ, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जो अमेंड हुआ, I was part of that amendment committee. I was part of that housing chapter committee. तो ये हम लोगों ने नया एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है कि बिकॉज कन्वेंस नहीं हो रहा है, बिकॉज ये कमेटी फॉर्म इसलिए किया था या ये अमेंडमेंट इसलिए किया कि जो हाउसिंग सोसाइटीज को जो इश्यूज हैं वो इश्यूज को हम लोग इसमें कैसे सोल्यूशन दें, what kinds of provisions we need to introduce, what kind of provision we need to relax, and what kind of provision we need to remove which are not applicable to housing society. So हाउसिंग सोसाइटीज का कन्वेंस, जैसे एक लेआउट प्लॉट है, 3 या 4 सोसाइटीज हैं, तो वो कन्वेंस नहीं कर पा रहे. व्हाई दे आर नॉट एबल टू डू द कन्वेंस? बिकॉज फेडरेशन अगर फॉर्म करना है तो फेडरेशन के लिए मिनिमम 5 सोसाइटीज लगती है. नाउ वी आर जस्ट 3 सोसाइटीज और 2 सोसाइटीज और 4 सोसाइटीज. सो MCS एक्ट में फेडरेशन नहीं फॉर्म हो रहा है, तो अदरवाइज हम लोग फेडरेशन में एडवाइस करते कि आप फेडरेशन में ले सकते हैं कन्वेंस. सो ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये कैसे कर सकते हैं. And then we have come out with a new concept which is called as the association of housing societies, right? The way there is a apex, there is a federation, we have come out with a concept called association of housing societies. That means even if there are 2 or 3 housing societies on a layout, less than 5, because for federation you need minimum 5 housing societies. So if you have a larger layout where there are less than 4 societies are there, so 3 or 4 societies, they can come together, they can form the association of housing under the MCS Act, and then you can take the conveyances in that association of housing societies, which is a new concept. So this is something which we have given the weightage, or we have introduced this concept, and I think the housing societies who are facing the problem of not getting conveyanced because of this minimum number criteria, so they will be benefited out of that. Then OC. Now someone asked me whether OC is mandatory. So OC is, yes, initially, or you can say what is OC? OC is occupation certificate, right? So unless and until that is a conclusive proof that your building is habitable, that means now everything, all the conditions of the construction or the as per the approvals या जो कुछ भी है आपका fire safety से लेके water connections, everything is in place and आप जाके रह सकते हैं. Now you can occupy your building, right? And if you are occupying without OC, that is illegal actually as per the BMC Act. Yeah, but it happens अगर builder ने नहीं दिया, still we go and stay and we have to pay the commercial rate. Now OC का जरूरत पहले था, but there is a circular of September 2017. So as per that circular, OC is not required, right? ये important point है कि अगर आपको convince करना है या आपको deem convince करना है तो OC का जरूरी होना, I mean OC होना जरूरी नहीं है, but listen to me carefully, OC का जरूरी नहीं है, but आपकी जो हाउसिंग सोसाइटी है या आपके जो मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स है उनको एक डिक्लेरेशन देना है. तो हम लोग जब ये डीम कन्वेंस का एप्लीकेशन डालेंगे तो वो डीम कन्वेंस के एप्लीकेशन में ये लोग देखते हैं ना, डिपार्टमेंटल ऑफिशियल उनके स्टाफ वो देखेंगे अरे ओसी नाही दिला तिथेच रिजेक्ट करणार ते प्रपोजल. तर तसं नाही है. September 2017 onwards OC is not required, but there should be a declaration from the committee
on behalf of the housing society that they will go for the OC, that they will do all the efforts to get the OC, and it is their responsibility to get the OC. That is the declaration you have to give. So with that declaration also your proposal is getting processed, right? So OC का होना उतना वैसे जरूरी नहीं है. फिर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे मुझे किसी ने ये भी क्वेश्चन पूछा कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं मैडम, इसमें कैसे हो सकता है, या व्हेन वी डिलीवर द सेशन तो बहुत लोग पूछते हैं कि मैडम बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, तो ये कैसे. तो ये जून 2018 अगेन देयर वाज अ सर्कुलर फ्रॉम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड दे हैव रिड्यूस्ड द लिस्ट. तो जो 25-30 जो मेंबर ये जो 25-30 डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट था वो उन्होंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, उसको एक 14 या 15 डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट अभी है. सो एज पर जून 2018 सर्कुलर, तो आप इसको गूगल आउट भी कर सकते हैं. और जो मेरे सीएस हैं तो सीएस को मैं ये सारे अपडेट्स वैसे भी भेजती रहती हूँ मेरे गूगल अपडेट्स के थ्रू. मेरे ब्लॉग्स पे भी अवेलेबल है और मेरे वेबसाइट पे भी. अगर आप रिसोर्स मटेरियल करके एक टैब है, सो इफ यू क्लिक ऑन दैट रिसोर्स मटेरियल टैब, तो उसमें आपको कोऑपरेटिव, रेरा और इनकम टैक्स ऐसे 3 टैब है. तो कोऑपरेटिव पे आप क्लिक करोगे तो उसमें सारी ये अपडेट्स मैं डालती हूँ, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, आर्टिकल्स, जो कुछ भी है. तो आपको कहीं नहीं मिलेगा लेकिन ये साइट पे आपको मिलेगा, ठीक है. तो आपको वहां से भी मिलेगा, ब्लॉग पे भी मिलेगा, और अगर किसी को चाहिए तो आई कैन सेंड, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, राइट. सो ओसी का होना जरूरी नहीं है, हमको डिक्लेरेशन चाहिए. ये सितंबर 2017 का सर्कुलर है. जून 2018 का सर्कुलर में डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट जो है वो कम कर दिया है. और 12 अप्रैल 2012 का एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर है which talks about stamp duty or the old rate that is to be applied for the documents pertaining to the period before 10th December 1985. और it also talks about the chain of documents. तो ये क्या बोलता है कि 12 अप्रैल 2012 के बाद अगर किसी ने डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड किए हैं तो आपको पूरा चेन ऑफ अग्रीमेंट देना पड़ेगा. जैसे सपोज किसी ने 2005 में फ्लैट लिया, 2008 में लिया और 2011 में, तो लास्ट ट्रांसफर वो हाउसिंग सोसाइटी में जो हुआ है वो 2011. सो इन दैट केस 2011 का लेटेस्ट एग्रीमेंट का कॉपी या उसका इंडेक्स 2 विल डू फॉर द एडजुडिकेशन प्रोसेस. बट अगर सपोज वो 2005, 2008, 2011 और 2013 या 2014 का उसका ट्रांसफर है, वो फ्लैट ट्रांसफर हुआ है 4 बार, तो in that case the department will ask for all the chain of documents, chain of agreement, just to see कि किसी documents में कहीं stamp duty miss out तो नहीं हुई है. So this is what the process of the DIN conveyance is all about. And let's say if there is a lease, because someone asked me about the lease. When we say it's a conveyance, तो conveyance होना है तो किसका होना है? conveyance property का है, immovable property का है, और जो मेरा राइट है, राइट, टाइटल एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी. सो इफ अ लैंडलॉर्ड इज हैविंग अ फ्री होल्ड, सो इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है और लीज होल्ड है. तो अगर फ्री होल्ड है तो फ्री राइट आपको मिलेगा, तो सोसाइटी के नाम का जो अभी आएगा कन्वेंस वो भी फ्री होल्ड ही होगा. जो लास्ट ओनर है एज पर पीआर कार्ड, अगर उसका नाम लीज है, अगर वो लेसी है, तो वो हमको जो कन्वेंस देगा वो लीज ही देगा. तो वो लीज होल्ड ही होता है, वो उसमें ट्रांसफर नहीं होगा, वो फ्री होल्ड में नहीं जाएगा. सो दिस इज अनदर पॉइंट विच आई थॉट अपने को क्लियर करना है. सो ये एक पॉइंट था. बाकी कलेक्टर लैंड वगैरह तो अनलेस एंड अंटिल यू गेट द एनओसी फ्रॉम द कलेक्टर, और सपोज यूएलसी रिमार्क है आपके प्रॉपर्टी कार्ड में, तो जब तक वो रिमूव नहीं होता है, या वो जो प्लॉट है आपका, वो सारे हाउसिंग सोसाइटीज दे डोंट कम टुगेदर एंड टू रिमूव दैट यूएलसी रिमार्क, द सोसाइटीज कैन नॉट प्रोसीड फर्दर. सो देयर आर challenges, and yes, there are challenges, but everybody should try to see that you will be helping your managing committee to take this decision. So whatever cost, because as I said 1 से 1.5 महीना इसमें, 1.5 साल इसमें जाता है. So it's a long drawn process, lot of documents, lot of documentary work, lot of follow up, lot of leg work you need. So it makes sense to appoint the consultants also, and whatever you can shortlist depending on what kind of service they give. So we are not discussing on that. Now I will ask Dharanidhar Patil sir. He is a DDR.
So, sir, I would request you to kindly guide us for maybe 10-15 minutes as a role of district deputy registrar. तुम्ही काय बघता? What is that you see? Why you reject the application, or what is the precaution that the housing societies should take while dealing with the dim conveyance application? DB Patil sir, आहेत तुम्ही? Patil sir? Good evening, everybody. Am I Good audible? evening. Yeah, Yeah, am you I are audible? You are audible, but बाकी सगळे mute वरती आहेत. No, that doesn't matter. बोला So, बोला sir. You are audible. as I see there As a departmental official, तुमचा आम्हाला view आणि two opinion द्या. participants, Yeah. there are Yes, sir. meeting, and this is a wonderful. Pune is getting little shower now, and we are happy and cool. This is good to start with. You have briefed almost all the points, and nothing is left out actually. But I'll describe the role of the district deputy registrar in the process of deemed conveyance. Yeah. As per the MOFA Act 1963, he is authority to application in conveyance. And after receipt of the application, he goes through the documents which are enclosed with the application. The application is to be submitted online. The fees are also to be paid through stamp, and that too is a process where no cash is involved. The documents which are enclosed, especially there are 7-8 major documents. The first is the, of course, registration of the society. That is a most and foremost document. Unless the society is registered, we are not authorized to look into the matter. If it is a partner, then we also can handle the deemed conveyance of apartment under the MOFA Act, wherein the district deputy registrar is an authorized person. Then sanction letter, CC, OC, and all those things. This has to be a plan, or say authority approved plan. Will not go into the deemed conveyance of a property which is illegally constructed or which has no permission of the appropriate authority. So that is another step with what we look at. Then we go through the plan, the carpet area, the required this too is required to ascertain that the stamp is paid, duty is paid, though we don't go into those arithmetical or financial payments of the this sub-registrar's office. We don't go for that. We only see whether the members have purchased the flats from the developer, and we also see that the developer has not transferred the deemed the society. If not made, see whether the society has approached the developer to convey the property. To prove that, we go through the notices issued by the advocates of the society or the chairman of the society to the builder requesting him or her to convey the property. Right. Failure of the conveyance from the side of the builder to the society, then the jurisdiction of the registrar is invoked, and this application filed under MOFA section 10 is to be dealt by the district deputy registrar. The application is received of the district registrar, staff goes documents.
And one by then there is a kind of a sort of checklist readily available with all chartered accountants and the advocate people in the field, or even on the website of the registrar. The list is available. So we go through the checklist and see if all the documents are correct and okay. In that case, we'll issue a notice to the respondent. Generally, respond in this of first is the developer who had authority to convey the property, and then the landlords. The landlords are there on the 712 extract maintained by the revenue department, and a latest copy of the 712 extract is to be enclosed to the proposal. So the names of the owners are taken from 7 extracts. If some of the owners have expired and their names are not removed from the 710 extract, then their heirs are to be brought on record. If heirs of the late or deceased owner is not known, then we issue, you have to issue a public notice on the to let them those people know, the heir apparents, that such a kind of proceedings or suit is going on in the office of the district registrar. Then we issue No, notices that to all these owners. take minute. That means Yes, please. suppose legal heirs has and owner is died and legal heirs has, so whether they can come forward and based on the indemnity or something they can go with the dim conveyance. Legal heirs, succession certificate or something. Legal heirs themselves have to enter their names in the land record office, the land revenue record office, and then they will get the right to sign the document. Before There was a query on this, yeah. Okay. And if generally what happens, the owner has taken away his money, the Right. builder has also taken away his profits. Right. Neither of them is interested in conveying the property to the society. Right. Then and therefore, this mechanism is introduced in the MOFA Act. Right. And this is a very fantastic mechanism in the sense that owner is not available, builder is not available or not traceable, and people have purchased the flats. Right. The building is standing there, building at certain age. Let us say the building has a 50 years of age constructed. But in this process, when we go for reconstruction, we find that the 712 extract is by owner, and the society has no right whatsoever to apply for reconstruction. So dim conveyance is the most essential process through which the society has to go and obtain title to the ownership. You have already paid the amount. You have paid the amount for the flat, for the construction, as well as the land beneath the building. So you are owner, but ownership rights have not been transferred to the society, and you have to apply for this. And having been absence of builder and owner, this government has provided this mechanism. So you go to the district deputy registrar, file an application, and obtain dim conveyance certificate from him. This certificate is legal proof that ownership is transferred in the name of the society. Only the society has to go to the sub-registrar's office, register the document. Our officer will accompany you to the document of the government that this property is transferred to this society. In the meantime, there is certain process. Once the application is received, once the documents are found true, correct, then we'll issue the notices. Once the notices are issued, the other party is given right to reply to the application, and such reply is taken on record. And once reply is received, we generally record for oral submissions of the applicant as well as the respondents. So the first will hear the applicant, listen him, hear him properly, and he points out the documents in the application, his right to the ownership of the property,
and then we also hear the respondents, the developer and the owners. And after hearing both the parties, we come to the conclusion that owner and the developer have not executed the property in favor of the society, and this is a fit case for passing an order under deemed conveyance. So a detailed order is passed and a certificate is issued that final proof of property. You have to just pick up the certificate, go to the sub-registrar's office. Our person will accompany you there. He will also sign, you will also sign, and record is mutated in the land revenue record, and 712 extract is changed, and name of the owner is put into the bracket, and name of the society is entered, and society becomes owner of the property. This is the simple process. Sir, Generally, this process takes about sir, 6 months. Sir, ex parte order is passed. Like, see, I know, but for the benefit of the member, when the ex parte is being passed, order is being passed by the DDRs. Ex parte order is also passed in the event that bidder or the owner fails to appear before the registrar on the fixed date of hearing. But the notice has to be served to the builder and the landowner that on so and so date hearing will be conducted for deemed conveyance of so and so property situated at so and so place. Unless the notice is served, the ex parte order has no meaning. It will stuck. Right. So really takes at most to serve through AD and or under civil procedure code. So the notice is served, and once notice is served, receipt is obtained from the builder as well as the landowner. Then it is a conclusive proof for us to proceed further, and ex parte order is passed without any hesitation, as based on the documents submitted by the applicant, and there is no problem about it. But we take care that notice is served and he fails to appear. So there is no issue if builder doesn't come forward or owner doesn't come forward. Generally what happens, builder and owner are not interested in the property. They accept the notice and sit back at their home quietly and happily. They are happy that you people are struggling to get it, and you yourself will get it, and they'll be free of any bad do this and that. So they are usually happy with the application. Resistance is there in some cases. Now we'll look into those cases wherein there is a resistance or where there is a problem. Generally, as and when there is some FSI is unconsumed FSI on the plot, the builder wants to develop the rest of the plot and use and consume that FSI. So he'll resist. He'll say that this much FSI is not transferred to this society, so the entire plot cannot be transferred. So in this case, there is a resistance. So you have to put appropriate defense in that case. But every builder has to register a society or a company or a trust or whatever, some legal organization to handle the property and transfer and convey within 4 months after obtaining of CC. That is the law, what it says. And 4 months is a very, every society has crossed this limit. No society is automatically transferred by the builder. Very few societies are conveyed the property automatically by the builder. Very few, very few. As of I know that there are 90,000 societies in state of the Maharashtra, out of which 18,000 societies are in Pune. Only 3,000 societies have gone through this conveyance process. So there is a large and huge quantum which needs to approach this and obtain, only will become a owner of the property. Unless your rights are recorded in the land revenue record, you are not owner of the property. You are only, you may be owner of the building, legally constructed building, you may be owner of it. But once the building is demolished or once the building
be demolished, then you will be nowhere. You will be in air only, nowhere but only in the air. I would request you, all the participants, to use this process, very simple process, and it is a technically not much difficult. Only we have to engage. If you are busy people, I generally find in Pune that all the people are doing the society work as if they are volunteers. They volunteer themselves. They try to save money. Their mentality is to save money. Okay, that's fine. But this is fine for the family things. Why you want to save money of the society? You contribute more, appoint an expert, and give him whatever necessary amount, comparatively the best person you may please engage, and give the documents and rest at home. DIM conveyance will be done, That is what certificate will be exactly. issued, That is property will be executed, that is one of the and you will challenge. be happy. पर But सर एक प्रश्न तुम्हाला असा I आहे don't know why many societies do not appoint managers also. They want to, how society can run automatically. that is And what I chairman is unhappy with the nuisance phone calls that water is not coming, there is a seepage, there is what, there is this, there is this, that. lot of overhauling is needed. Lot of overhauling is needed in the mindset and awareness. One question. There has to be a professional approach to manage the society. Yeah. But it Sir, is not. one question as a DDR. Let's say there was one question asked by Bharat Chainari sir. He is a certified auditor also. So Tansi society at the Thana district that is being divided into Thane and Palghar district now. Right? There are two districts out of one district. So they have got the conveyance order from Thane DDR. So the question is now conveyance deed वरती सही कौन करणार, whether it is Thane DDR or Palghar DDR. So in my opinion, the existing DDR now, whoever is Palghar, so Palghar DDR should sign on the conveyance deed. So you can just update on this. The question is a very interesting question because we have a geographical jurisdiction. So Thane, this property is situated in a Palghar district. Thane district deputy registrar is not authorized to sign the document. Only what will be happen in such cases, Thane district deputy registrar will transfer the file and case to the Palghar DDR, and Palghar DDR authorize an officer from his office. So the society may call me, I'll talk to the DDR, and things will be resolved. There is not much problem about it. Yeah, that was interesting. So Okay, now I will open the chat people. box. Sir, I will open the chat box. Can we chat disable केले? If anybody wants to ask you question, they will ask. But I want the participant to be very reasonable while asking the question. It should not be an embarrassing question at all. Yeah, so I'll just open the chat box now. Or maybe I will unmute the members. Let me see. Yeah, someone has raised hand, and let me see who is that participant. Rushabh Savai. Yeah, Rushabh ji, ask your question. Yes. Yes. Hello, ma'am. Yeah. अच्छा, खाली एक ही सवाल मुझे पूछने का था कि हाल ही में अभी व्हाट्सएप पे एक महीने से मैसेज सर्कुलेट हो रहा है सब जगह पे। सर, आपका वॉइस थोड़ा आवाज प्रॉपर नहीं आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए ना। हाँ, अभी रिसेंटली एक महीने से अभी एक व्हाट्सएप पे मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि अभी कन्वेंस डीड अभी कैंसिल होने वाला है महाराष्ट्र में। एक नया लॉ कुछ पास। I will respond to that question. वो मैंने मेरे लिस्ट में है। See, this conveyance deed is cancelled. This is a misleading news और मेरा उस पे एक वीडियो है। आप सहकार विश्व करके मेरा YouTube चैनल है, आप मेरे चैनल पे जाइए, आधे घंटे का वीडियो है। This is a fake news. It is only vertical property card. The cabinet decision, cabinet has passed the decision कि जैसे ये property card है, this is a horizontal maybe property card. तो वैसे ही वर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड, दैट मींस जमीन का सब इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी कार्ड में आ रहा है, बट जो बिल्डिंग है और बिल्डिंग के जो मेंबर्स हैं, जो फ्लैट लेते हैं, ओनरशिप है, उनका नहीं हो रहा है। तो वो रिकॉर्ड करने का ये कैबिनेट डिसीजन हुआ है, बट कन्वेंस डीड कैंसिल हुआ ऐसे नहीं है।
So you can please watch my video. I will move to the next participant. Okay. शैलेश कुलकर्णी. शैलेश जी तुमचा प्रश्न विचारा. शैलेश कुलकर्णी. थँक्स शिल्पा मॅडम. माझा क्वेश्चन असा आहे की आमची सोसायटी भांडूप मध्ये आहे आणि आमचं फेडरेशन झालेलं आहे आणि वी हॅव 7 सोसायटीज विथ अस टुगेदर आणि आमचं डीन कन्व्हेन्स आमचं ऑर्डर सुद्धा आलेली आहे. पण आमच्यातली एक सोसायटी सांगते की आमचं सोसायटीच्या प्रॉपर्टी याच्यावरती नाव सेपरेट सोसायटीचं नाव असायला हवं. पण आमचं जे आमची ऑर्डर आली आहे ती आमची फेडरेशनच्या नावाने आली जी पहिल्यांदा ऍप्लिकेशन केल्याप्रमाणे. सो इन दॅट केस व्हॉट शुड वी डू? कुलकर्णी सर, माझा ऍडवाइस तुम्हाला आहे, तुम्ही रजिस्ट्रेशन करून घ्या आणि जर त्या 7व्या सोसायटीचं काही शंका कुशंका किंवा काही हरकती असतील तर त्यांना सांगा की change this order in high court and obtain necessary orders, then things can move further. परंतु तुम्ही वाट बघण्याची काही आवश्यकता नाही, त्यांचे ऑब्जेक्शन्स घ्या. ओके ओके त्यांना थँक्स. शंका असेल तर त्यांना सांगा की तुम्ही DDR द्या म्हणून. हॅलो ओके ओके. त्यामुळे आम्ही आता जी ऑर्डर आली आहे ते आम्ही घेऊ शकतो. म्हणजे तुम्ही ऑर्डर घेतली पाहिजे, तुम्हाला अडचण काय ऑर्डर घ्यायला? 7 संस्थांचे जर फेडरेशन असेल आणि फेडरेशनच्या नावाची जर प्रॉपर्टी होत असेल तर त्या 7व्या संस्थेला काय हरकत आहे? तुम्ही तो प्रश्न अजून मला म्हणजे तो उत्तर नाही दिलेलं. 7व्या सोसायटीच्या अडचणी काय आहेत? नाही, त्यांची एकच अडचण आहे साहेब की ते म्हणतात की आमचं कुलकर्णी सर ऑलरेडी 13-14 जणांनी हँड रेज केलेला आहे, तर तुम्ही मला सेपरेट हे करा, आपण तुम्हाला त्याचं उत्तर देऊया सर. लेट्स गिव्ह एव्हरीबडी अ चान्स प्लीज. ओके मॅडम. नो इश्यू. Preeti Jadhav, you have asked the question. You have raised your hand. Please ask the question. Yes, good evening, madam. Yeah, good evening. I have got 2 questions. One is on the line which you said that if OC is not there, the member managing committee can give a declaration. Right. Okay. So, but then that declaration, will that have any condition that at least during the process of getting the deemed conveyance, in between somewhere you have to submit the OC, or we can just keep on saying that yes, we are trying for the OC? Is the first question. And second question is, which adds more value, the OC or the conveyance deed? Which is more useful and more important to obtain? Oh, madam, OC is something different. Conveyance deed is something different. OC you receive from the corporation. It is a conclusive proof that your construction is completed in all respects and members can go and occupy the flat. Whereas conveyance is, it talks about the ownership of your land, right? So these correct. are totally different. You should have to have OC if you have to stay or occupy the flat. And conveyance deed you need to prove that the society is a legal owner of that particular land. Right. Your first question can be answered by Dhanidhar Patil sir. Sir, त्यांचा पहिला प्रश्न असा होता की OC जाधव मॅडम, डू यू अंडरस्टँड मराठी? हा. Yes sir. Yes sir. तर OC म्हणजे निवासाचा दाखला आहे, राहण्याची परवानगी आहे. म्हणजे काय आहे? सोसायटीमध्ये पाणी आहे, सिस्टम आहे आणि सेफ्टी आहे. आणि कन्व्हेयन्स म्हणजे प्रॉपर्टीच्या मालकी हक्काचा कागद आहे. तुम्हाला दोन्हींची गरज आहे. OC बिल्डर घेतो, कन्व्हेयन्स तुम्हाला घ्यावा लागेल. ओके. पण सर क्वेश्चन असा आहे, हो सर पण जर OC मॅडम एक मिनिट पहिला प्रश्न आपण घेऊया. दुसरा प्रश्न प्लीज कारण बऱ्याच लोकांचे हात हे आहेत. चालेल. पाटील सर त्यांना सांगा की ओसीच्या जागी आपण डिक्लेरेशन द्यायचं आहे कमिटीने, तर ते ड्युरिंग द पिरियड आम्ही आणू असं त्याच्यामध्ये आहे की कसं आहे ते फक्त ऍज अ DDR सर थोडंसं गाईड करा. बघा, अशी जी OC असते ती PMC, BMC, PCMC, KDMC सगळ्या कॉर्पोरेशन मध्ये एक फाईल असते, त्याच्यामध्ये ती मिळते. मला RTI खाली एक साधा अर्ज करायचा आहे की अमुक आम्हाला OC ची कॉपी हवी आहे आणि ती कॉपी मिळाल्यावर तुम्ही आणून द्या. हिअरिंगच्या काळात कधीही शेवटच्या तारखेला जरी आणून दिली तरी चालेल, थांबण्याची काही गरज नाही. डॉक्युमेंट दाखल करा, होईल, हिअरिंग सुरू होईल. हिअरिंग सुरू झाल्यानंतर OC ची कॉपी तुम्ही आणून द्या. इज दॅट ओके?
म्हणजे ड्युरिंग द प्रोसेस इट इज मस्ट. कारण काही कारणामुळे जर ओसी अडकलं असेल कन्स्ट्रक्शन इश्यूज मुळे, तर ते डिक्लरेशनच्या बेसिसवर फायनल आपलं कन्व्हेन्स नाही होऊ शकत, डीम्ड कन्व्हेन्स नाही होऊ शकत. म्हणजे इज दॅट सो? होईल होईल होईल. Conveyance ज्या होईल अडचणी आहेत त्या तुम्ही TDR ला सांगा, होईल. होईल. ओके ओके ओके. थँक्यू I मॅडम. will थँक्यू सर. Yeah, thank you. थँक्यू I will check. Oh, कौन है? दयानंद. दयानंद माणगावकर. प्रश्न विचारा सर. Yes, yes. Can you hear me? Good evening, everybody. My question is for Mr. Patil. Sir, सर मराठीत बोलला तरी चालेल. Haji? मराठीत बोलला तरी चालेल. माणगावकर आहात ना? Yes, yes, yes. किती notices दिला? After how many notices the expiry order is passed? How many times the notice is given to the developer for appearing before the DDR? बर. ओनली वन नोटीस इज इनफ. One notice. Okay, thank you. कशाला नोटीस पाहिजे? त्याला ती मिळाली म्हणजे झालं, फक्त पोहोच पाहिजे आम्हाला रेकॉर्ड साठी. Since it is a question of principle of natural justice, normally 3 chances are given, so that's why I asked this question. Thank you. Natural justice is given when notice is received by him and he comes or he doesn't come is his choice. Yeah. नाही, हा त्याचा चॉईस आहे. नोटीस असेल त्याला मिळाली पाहिजे, हे जास्त महत्वाचं आहे. आणि जर नोटीस त्याचा पत्ता जर मिळत नसेल तर आपण वर्तमानपत्रात देखील पब्लिक नोटीस देण्यास परवानगी देतो. आणि अशी पब्लिक नोटीस देऊन देखील ते आले नाही तर दॅट इज ऑल्सो अ इनफ नोटीस. Yeah. शीतल शाह madam, ask your question. शीतल शाह मिस्टर, नमस्कार. नमस्कार साहेब, SRA खाली जर प्रोजेक्ट असेल, पहिला जो प्लॉट जो दिलाय लीज डीड आवाज आहे, येत नाहीये. SRA खाली जर प्रोजेक्ट असेल हा. आणि जर लीज डीड आहे ती SRA बरोबर केलेली आहे आणि त्यांनी फ्री सेलचा जो प्लॉट दिलेला आहे फ्री हा. सेल साठी, तर त्यावेळेस कन्व्हेन्स डीड कुणाबरोबर होईल? सर SRA आहे तर SRA बरोबरच होईल ना, आणि लीजच पास का? SRA चा प्लॉट जो आहे कलेक्टरने SRA च्या नावाने दिलेला आहे, स्लम रिहॅबिलिटेशनच्या नावाने, आणि स्लम रिहॅबिलिटेशन मध्ये जो फ्री सेलचा जो आहे, SRA would be the authority to pass on the lease to the society. SRA will be pass on the lease on the name of the society free sale plot साठी. आणि कलेक्टर थ्रू जाते, त्याच्यामुळे तुम्हाला कलेक्टरला पण पार्टी करायला लागेल. पण प्लॉट डिमार्केशन केलेले नाही आहे फ्री सेलचा आणि सेलचा. बर, ठीक आहे, हे आपण सेपरेटली घेऊया. पण तुम्हाला SRA कन्व्हेन्स आणि कलेक्टरचं पण NOC लागेल. ब्रजमोहन तोष्णीवाल सर, आपका क्वेश्चन पूछो. Nexus 5. Who is Nexus 5? Nexus 5. Someone has raised his hand. हेलो. Yeah. मॅडम, मेरा क्वेश्चन ये है की डीम कन्व्हेन्स आणि कन्व्हेन्स नसेल तर सोसायटी रिडेव्हलपमेंटला जाऊ शकते का? काय डीम कन्व्हेन्ससाठी? कन्व्हेन्स आणि डीम कन्व्हेन्स नाही आहे आमच्याकडे, तर सोसायटी रिडेव्हलपमेंट मध्ये जाऊ शकते का? तेच एक्सप्लेन केलं. तो रिडेव्हलपमेंट कोण करू शकतं? त्याच्याकडे राईट्स आहेत, ओनरशिप आहे प्रॉपर्टीची, लँडची. आपल्याकडे हाऊसिंग नाही, म्हणजे आमची सोसायटीचे कमिटी मेंबर आणि जनरल मेंबर आहे ना, ते समजतात की डीम कन्व्हेन्स आपल्याला ज्याला राईट देईल तो करून देईल. तसा होऊ शकत नाही, माझं म्हणणं असं आहे. राईट आपल्याकडे राईटच नाही तर आपण कसं राईट द्यायचं? कळलं. रिडेव्हलपमेंट करायला सोसायटीकडे डीम किंवा कन्व्हेन्स असणं मॅन्डेटरी आहे. त्याच्याशिवाय तुम्ही रिडेव्हलपमेंटला जाऊ शकत नाही. मॅन्डेटरी आहे ना? ओके, मॅन्डेटरी आहे ना एवढं? मंगेश मालकर सर, स्टार्ट युअर क्वेश्चन. नमस्कार मॅडम आणि सर, माझा प्रश्न असा होता की आमची जी सोसायटी आहे तर भांडुपची आहे, तर याच्यामध्ये प्रॉब्लेम असा आहे की आमचा जो बिल्डर होता तो वारलेला आहे आणि लँड ओनर फ्लॅट आहे, तर ते म्हणतात की ते रजिस्ट्रेशन वगैरे, स्टॅम्प ड्युटी वगैरे असं, त्यामध्ये कसं काही प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट?
काय तुमचं क्वेश्चन नाही? थोडंसं शॉर्टकट मध्ये बोला आणि बोला. आवाज येत नाहीये. हा हा हा, बोला. आमचा लँड ओनर वेगळा आहे. हा. बिल्डर जो होता तो वारला. Deemed conveyance is the only option for you. नाही पण लँड ओनर आहे, त्याचं सोसायटीकडे डिमांड आहे की रजिस्ट्रेशन तुम्ही करून द्या. जर तुमचा लँड ओनर जर कॉपरेट करत असेल then you can go with the regular conveyance. Okay. Yeah, Ganesh, please Yeah, ask your good question evening. fast. Good evening. My question is that there is one plot and two societies on it. Now, without subdividing the plot, how can deemed conveyance be done by one society? As I said, there are case laws on this. Mazda Construction Company का भी case law है. Individually, society can go for the conveyance. You get your actual area of the plot plus undivided share in the cooperative. That is how the order is passed. But shares are also to give his version. Thank you. Patil sir. हे तुम्ही फेडरेशन करून जर डीम कन्व्हेन्सला जाल तर दोन सोसायटीच्या नावचं पण होऊ शकतं. नाही, त्यांचा प्रश्न असा आहे की दोन सोसायटीज आहेत आणि त्यांना इंडिव्हिज्युअली जायचंय, तर ते कसं डिवाइड होतं? तर मी म्हटलं इंडिव्हिज्युअली तुम्ही करू शकता. प्रपोर्शनेट शेअरची ऑर्डर होईल. कोणी ऑर्डर मार्क करून देणार. हाँ, सो प्रपोर्शनेट शेयर आपको मिलता है. ठाकुर, ज्यांना प्रश्न विचारायचे नाही त्यांना थोडंसं कन्फ्युजन वाढू लागलं. क्वेश्चंस प्लीज आपसात बोलू नका प्लीज. मनीष ठाकुर प्लीज. आदत लगे ना. हॅलो ऋषभ अनम्यूट करा. नाही, आय थिंक एक मिनिट आपण एक हॅलो. हा बोला, मनीष ठाकूर बोला. हा सर, thanks Patil sir for a very informational session. My question is that we are a federation of 7 societies and the builder wants to give the conveyance in the name of the federation, whereas the societies want conveyance in name of individual societies. So there is a kind of a deadlock. So what solution would you suggest? Deadlock is to be resolved. You accept conveyance in the name of federation, that is advisable. Yeah. Okay. You can Thank you. discuss on this. We can discuss on this. Yeah. Kamal Khadi. Okay, thank you. Kamal, please ask the question. मॅडम, मी कांदिवलीवरनं बोलतोय. हा बोला. या प्रोसेससाठी नियर अबाउट कॉस्ट केवढी येते? नाही सर, हा प्रश्न आपण इथे घेणार नाही आहोत. मी म्हटलं कॉस्ट हॅज टू डिसाइड. ओके. आणि माझं ऑफिशियल कॉस्ट 2000 रुपये आहे. ओके. आणि माझा दुसरा क्वेश्चन आहे की आपण बिल्डरला किती नोटीस पाठवल्या पाहिजेत? बिल्डरला 3 नोटीस पाठवा आणि त्याच्यानंतर तुम्ही स्वतः टीम कन्व्हेन्स मध्ये जा. रेडमी कोण आहे? रेडमी आज क्वेश्चन. रेडमी किसे है? नेक्स्ट ऋषभ सवाई म्यूट करा. राजेश राणे. रेडमी कौन है? रेडमी प्लीज. मिलिंद कारखानीस. प्लीज आस्क द क्वेश्चन. हॅलो, हाय. मी मिलिंद कारखानीस गोरेगावहून बोलतोय. हा बोला सर. ऍक्च्युली आमचं कन्व्हेन्स होऊन जवळजवळ 5-6 वर्ष झाली, पण इन बिटवीन एक ट्रेस पासर होता, तो काहीतरी शेड्यूल ट्राईब शेड्यूल ह्याचा होता आणि तो कोर्टमध्ये जाऊन त्यांनी काहीतरी लिगल डिस्प्यूट उभा केला. तर त्याच्यामध्ये काय झालं की त्याच्यामध्ये तहसीलदारनी कन्व्हेन्स असूनही ती प्रॉपर्टी कार्ड ती आता गव्हर्नमेंटच्या नावाने ट्रान्सफर केली. तर वी वॉन्ट टू चेक इज देयर एनी आयदर युअर एजन्सी और समवन कॅन हेल्प अस टू एन्श्योर दॅट वी गेट अ प्रॉपर्टी कार्ड इन आवर नेम. Yes, you can get back to us. We'll definitely help.
on that. Yes, we can definitely help you on that. मी तुम्हाला मग पर्सनल ईमेल करीन. Then I'll brief you. I'm a chairman of the society. So basically, we need this kind of help from you. Thanks a lot. Yeah. Bye. We'll help you on that. Yeah. Thank you. Parvez Kapadia, sir. Thank you. Parvez Kapadia, sir. Please ask the question. Parvez ji. Hello. Yeah, Parvez ji. Question. Yeah, Mr. Patil. Yes, Hello. Yeah, Mr. Patil. Yes, please. Yeah, you have told that there is a carpet area statement to be required for the if you don't have an OC and if you don't have an OC plans, the carpet area. Then who is going to certify the carpet area while doing the deemed conveyance? Your architect of the society has based upon the documents available to you. Yeah, but at present all the societies have got all illegal things. Everything has been enclosed and all. Then who is going to decide what is the carpet area? Illegality cannot be legalized through deemed conveyance. It is not allowed. Okay, and Mr. Patil, how much is the time for an appeal to the deemed conveyance? Because there is no appeal. I think we have to file a writ petition under Article 226 of the Constitution, right? So, is there any time limit for the appeal to an order of the Deputy Registrar DDLR? No appeal, only writ petition. Writ petition is there. Yes, Ashwin. Yeah. Namaskar, madam. Namaskar, madam. Namaskar. Okay, yeah. Madam, if you want to utilize your service and contact number and everything, can you please share me? Yeah, I will share. I have your email ID and your contact number. I will share it with you. Thank you, madam. Thank you so much. Thank you. Also, I will leave my number. Thank you all. Thank you, sir. I will give the number of Patil Saab also. Sir, thank you for joining, and thanks all participants for joining this. I hope Thank you. everybody benefited from this session. You can just message me what are the areas where you want topics to be discussed or the sessions be conducted by me. So if you just message me or so I will accordingly line up the session with the departmental official, because then that becomes very So with this, this is my number. I've sent my number, so you can write it down. 9820053395. This is my number. So anybody who wants to get back to me can very well get back to me. This is 9820053395. And Patil sir, तुमचा पण number द्या sir. Patil sir. Okay. I'll give the number of Patil Saab subsequently. So thanks all. Thanks for joining this session. And yes, I'll come out with new topics. Stay tuned and just visit my website, visit my blog, and visit YouTube channel also, Sahkar Vishwa. Thank you. Thanks a lot. Patil sir, thank you so much for joining. Patil Saab. Patil sir, thank you so much for joining this session. Thanks for guiding us. Thanks for replying to the queries of the participants, sir. Help definitely will get back to you. Thanks. Thank you, sir. छान झालं session आणि छान वाटलं. Yeah. Namaskar. Yeah, thank you very much, ma'am. Thank you. Thanks. Bye.